See! Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Hey guys! This is going to be an exciting weekend for us. The first week of Premier League, and not only Premier League, I think it's going to be lots and lots of games. This is going to be a bonkers of a week, and we have beautiful fixtures with playing teams which I think they are high intensity fixtures as well. So it's not going to be a soft start for any of the top teams which we will be discussing. And Pal and me, we are going to go in depth and we are going to discuss what are the strategies people will follow and what are the teams will follow. Pal, are you excited or not? Absolutely. So people, first of all, smash the like button, smash the subscribe button. The response has been great till now. We have almost 3 videos that have passed 1K views. The response has been great, and विल बी रेगुलर नाउ. हमेशा हम प्रीव्यूज पोस्ट करेंगे, हम रिव्यूज पोस्ट करेंगे. रिव्यूज प्रॉब्ली हम संडे रात को या मंडे मॉर्निंग को हम पोस्ट कर दिया करेंगे. तो बहुत ही लॉन्ग और अच्छा सीजन होने वाला है. और guys, just before we want to speak about the exciting week ahead, एक मैच तो बात करवा था. It's between पाल ने मतलब मैंने पाल को टेक्स्ट किया, भाई तूने ये मैच देखा कि नहीं? ये मैच तो तूने मतलब आंख बंद करके देख रहा होगा ना, मतलब इसको दिखा ही नहीं होगा. And that was the match. Yeah. Super Cup, UEFA Super Cup. It was between the champions of Europe, Real Madrid, and the champions of Europa League, which is Atlanta. भाई पाल, मैं तुम्हें इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ. नहीं, मैं भी ज्यादा नहीं कमेंट नहीं करना चाहता. Bro, I would like. पर what I want to say, football analyst. I just want to say कैसा लग रहा है तू? I just want to say कि Jude Bellingham was balling out. Jude Bellingham was balling out. मेरे को सुनाई नहीं दिया. बाल एक और बोल, अपने व्यूअर्स को सुनाई नहीं दिया. Jude Bellingham was balling out against Italian farmers. Basically against Italian farmers, against a gross Italian team who finished. मतलब कहाँ finish करी? Let's see कि where they finished. मतलब ये तो बहुत अच्छा strategy है. मतलब they fucked Liverpool out of the ballpark, bro, in the Europa League. मतलब ये बहुत अच्छा strategy, and हमने काफी praise भी किया था Gasperini से अटलांटा को. I think they're a well structured side. एंड ऑल्सो मतलब दिस इज हाउ यू नो द लिवरपूल फैंस को हमने इसलिए क्रिटिसाइज किया था कि यू नो हाउ टू डिफ्लेक्ट, राइट? अगर तो हम लोग जीते हैं इट्स बिकॉज दूसरी टीम बुरी है. अगर हम लोग अच्छा खेल रहे हैं इट्स बिकॉज वो दूसरी टीम चूतिया है. अगर हम लोग है तो तेरा टीम कैसा है? मतलब ये परफेक्ट डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स है. यू डोंट टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग ड्यूरिंग द गेम, बट रादर he was good. I am not talk about. I said he was balling out. What do you guys want to listen? I said he was balling out against the Italian farmers. They finished 5th last season, bro. They finished 5th. Bro, Atalanta are going to play the Champions League, bro. Yeah. But they Champions League में बहुत ज़्यादा farmers team भी आती हैं. You also know the Lille, Lyon, but by winning the Europa League, it's a very big thing. नहीं, पर Madrid का level ही अलग है ना, bro. Madrid का level. They beat Bayer Leverkusen, bro. Against the finals. Yeah. We all saw that. उन्होंने लिवरपूल को भी 3-0 पेला था फर्स्ट गेम ही. मतलब डिक्लाइनिंग लिवरपूल को बेसिकली. तो लेकिन नहीं, मतलब he was good. मतलब मैं ऐसा बुराई नहीं करूंगा, इसमें क्या ही बुराई है. He was good, he was decent. पर let's see. मतलब I just want to say one thing कि मतलब मैं ला लीगा इतना नहीं देखता करंटली, क्योंकि इंडिया में टेलीकास्ट का भी एक तो बहुत इशू है. पता नहीं इस सीजन कहाँ टेलीकास्ट होने वाला है ला लीगा. नहीं है, टेलीकास्ट नहीं है ना. कहाँ फैन कोड ऐप में आता है, तो दैट इज लाइक अ फैन कोड में भी पता नहीं आता ही नहीं आता. वी डोंट नो. आई डोंट नो. यू हैव टू बेसिकली पे मैच वाइज टिकट्स. यू कैन लाइक बेसिकली. हाँ, तो मतलब लेकिन स्पेशली मैं थोड़ा मतलब आई डोंट वांट टू से कि इलीगल स्ट्रीम्स, पर ऐसा करके हम वी वांट टू सी समवेयर कि देख लेंगे ला लीगा. कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा स्ट्रीम्स का. पर मतलब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आई विल वॉच जियो सिनेमा पे हो सकता है, जस्ट टू चेक एंड लेट अस नो. लेट्स सी. मैं बोलता हूँ कि ना I will watch Jude Bellingham in La Liga this season. And let's just then. हमने तूने पहले का बताया कि Jude Bellingham बहुत अच्छा था, ठीक है. 1-0 तू आगे हो गया, ठीक है. मैंने फिर अपन ने जब से देखना स्टार्ट किया Jude Bellingham को सिंस चैंपियंस लीग और यूरो में, he was absolute dross there दोनों में, ठीक है. तो मतलब compared to the hype, ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ही गंदा था. Compared to the hype he was dross, ठीक है. तो 1-1 हो गया, ठीक है. अभी इस सीजन देखते हैं. This is a defining season for Jude Bellingham क्योंकि Camavinga भी injured है, तो he has a chance to cement. I think that was never the case. तू जो ये तो तेरे हिसाब से तेरा व्यू है. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि he has a chance to cement his place in the midfield now. का जो फर्स्ट पेपर है वो Camavinga तो है ही नहीं वैसे भी. It's going to be still Modric रहेगा भले ही, but Modric, Valverde, Tchouaméni, तो that could be their midfield. It's going to be Jude again. तो किसको हटाएंगे इसमें? Valverde को नहीं खिलाएंगे. Valverde तो खिलाएगा ही ना, Modric को नहीं खिलाएंगे ना ब्रो.
हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ही हैज अ चांस नाउ टू सीमेंट हिज चांस नहीं प्लेस, है, क्योंकि क्योंकि सीमेंट तो उसने क्योंकि कर दिया नहीं पिछले नहीं सीजन में। नहीं क्योंकि एंcelotti का लास्ट सीजन कमेंट आया था, आई वांट टू कीप जूड एज अ, मतलब दूर रखना चाहता हूँ मैं उसको मिडफील्ड से, आई वांट टू कीप हिम एज अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द मिडफील्ड, ऐसा कमेंट आया था एंcelotti का। तो मैं ऐसा बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ अपने बारे में, अपन खुद से, ठीक है। क्योंकि तो उनके लेट्स सी, पास तब टोनी क्रूज मतलब था। हाँ तो वही तो हम्म। प्रॉब्ली इस सीजन अगर एक्सपीरियंस के लिए उनको टोनी क्रूज को हटा के किसी को खिलाना था, दे पुट मॉड्रिच देयर, आई एम नॉट गेसिंग इट, पर देखते हैं क्या होता है। ही वाज गुड इन दैट मैच, लेट्स सी कि ला लीगा में वो कैसा करता है, लेट्स सी वो चैंपियंस लीग में फिर से कैसा करता है, या लेट्स गो। आई या थिंक बट ओके, बट जूड aside, right? इट्स अ नाइस सेगवे टू प्रीमियर लीग नाउ आई Yeah, गेस। I think I think Jude aside, right? I just want to stress one thing against Real Madrid. बाप रे, second half में जो उनका गेम था भाई, they upped their पर game. फर्स्ट हाफ में ये था कि है ना, सब तीनों के तीनों वो लेफ्ट विंग ही खेल रहे थे, हाँ, तीनों तूने के तीनों नोटिस ऐसा किया? लग रहा था कि एंचेलोटी बोल रहा था कि तू वहां पे खेल, मतलब ऐसा ऐसा कर रहा था, देखा तूने? मिक्स करो हम्म मिक्स करो मिक्स करो, मतलब दे वर नॉट डूइंग इट टू दैट लेवल। बट हम्म जब भाई सेकेंड हाफ में जब जेल होना स्टार्ट हुआ, ओ भाई, रॉड्रिगो, रॉड्रिगो, विनी, एंड इट वाज बेसिकली ऐसा था गोल। फर्स्ट गोल ऐसा था, आई थिंक इट वाज कार्वाहाल प्लेइंग द बॉल टू रॉड्रिगो, Rodrigo playing the ball to Vinny, Vinny playing the ball to Bellingham, Bellingham to मतलब जो इसका गोल था, I mean basically Mbappe एम्बापे का गोल। वाला, So it was हाँ। basically all these high quality guys combined, and if they start combining like how they did in the second half, I think ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यही है, Mbappe को ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, Mbappe तू यहाँ उसको स्टार नहीं फिनिश है। करना है, उसको फिनिश करना है Exactly, बस। you have to understand this. Mbappe, हम्म, you are not the star in this team, and you don't have to do everything by your own, या right? Because you have exceptional players in and around you. मतलब तेरे को बस थोड़ा सा कम गेम टाल और ज्यादा गोल स्कोर कर, दिस इज व्हाट हम्म आई मीन, दैट इज व्हाट, राइट? क्या बोलते हैं कभी कभी कि थोड़ा सा अगर कम भी हो जाए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन दिस गेम, बिकॉज हम्म तू पीएसजी में यू आर द मेन मैन, No, but that's यहाँ all. पे नहीं है। He has to keep it simple. हाँ, He has to एग्जैक्टली, he has to keep his game simple. Run down the channels, हाँ, make the runs. Ball will come to you, and just slap it off and finish it off. एग्जैक्टली, That's the end game Mbappe has to do. हाँ। वो hot take था मेरा कि है ना, Mbappe might not do this season that well, but let's see कि कैसा season जाता Yeah, है। it was a good run Yeah, from Mbappe and it was a beautiful assist from Jude as well. उसने देख लिया और भागते हुए उसने परफेक्ट वेटेड पास दिया है। एंड व्हाट अबाउट yeah. विनी ब्रो, विनी का जो असिस्ट था वो तो बाप था। I जो mean उसने भाई, वालवर्डे को प्रीमियर दिया लीग था। टीम, मैं बोल रहा हूँ आर्सेनल भाई, ये मेरे को चाहिए यार, तुम लोग पे पर टीम मत खिलाओ ना यार, मेरे को ये टीम चाहिए। मैं क्रिटिसाइज करता हूँ डायरेक्टनेस यार, चाहिए। आर्सेनल को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, चलो ठीक है तुम्हारे पास इतने हाई क्वालिटी प्लेयर्स तो नहीं है, बट भाई लुक एट हाउ एंचेलोटी प्लेज सो डायरेक्ट, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द क्रॉप ऑफ ब्रिलियंट प्लेयर्स वी हैव। डिफेंस इतना तगड़ा, लुकमैन ने कितना ड्रिबल करने की कोशिश किया भाई, मिलिटो सामने खड़ा है, मिलिटो खड़ा है, रोड्री मतलब वो रुडिगर। रूडिगर खड़ा है, मतलब इट्स हम्म। बेसिकली वंडरफुल गेम था। फर्स्ट हाफ चलो ठीक है, इट वाज बेसिकली वही है ना, They were warming सांस up. सांस वो लेने में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रन प्रॉपर्ली। Yeah, they were warming up. दे वर वार्मिंग एंड व्हाट अ फिनिश, आई थिंक अटलांटा बच Yeah. गई, लास्ट में 3-4 गोल तो हो ही जाता। एंड आर्डा गुल, उसके बाद कौन आया? आर्डा गुलर, उसके बाद ब्राहिम डियाज, उसके बाद मॉड्रिच आया। अरे हम्म। चोत, ये क्या टीम है भाई। और कामा तो इंजर्ड है ही अभी, हाँ और भाई, एंड्रिक ला का भी तो लीगा बाकी है, मतलब इट्स लाइक, और एंड्रिक बाकी है अभी। हाँ एंड्रिक बाकी है, मतलब ठीक है, हाँ। उसको तो मतलब बहुत, मतलब 90 प्लस में आएगा वो स्टार्टिंग के सारे सीजन। उसने आर्डा गुलर को भी या ऐसे ही खिलाया एंचेलोटी ने। एंचेलोटी का एक 11 रहता है, वो पूरा सीजन वही चलाता है। वो या उसका ऐसा है नहीं कि वो 2-3 में से पेप जैसे वो करता नहीं है, उसका एक या टीम, वो टीम पूरा चलेगा। हाँ, मतलब उसके फिक्स होते हैं कि फर्स्ट 11 कौन है और हम्म, सब्स्टिट्यूट्स कौन आने वाले हैं, और वो उसका फिक्स सब्स्टिट्यूट्स रहता भी है। 90 में ही आते हैं। हाँ, ये कभी हार रहा हो तो फिर वो 70 में ले हार आता है रहा तो फिर। वो तब रॉड्री नहीं खेलता, वो रॉड्री को हाँ नहीं खेलता। तो मतलब वो ऐसे, उसका एंचेलोटी का बहुत मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर, मतलब कोच है वो। सो या मतलब आई थिंक दिस इज व्हाट, एंड नाउ सो रियल मैड्रिड, आई थिंक दिस इज वेरी गुड ऑन चैंपियंस लीग पेपर। विनर है वो, मतलब ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं ब्रो उस मैच के बारे या में, मतलब दे आर चैंपियंस लीग विनर ऑफ 24-25 आल्सो, मतलब उस बारे में कोई बात करने की है ही नहीं, मतलब प्रीमियर लीग पे फोकस करते हैं कि मतलब अब प्रीमियर लीग पे आ जाते हैं। या लेट्स हाँ इट्स अ गुड भाई, बट सेगवे ये टू तो है, प्रीमियर लीग। बट प्रीमियर लीग हैज टू लेवल देयर गेम अप ब्रो, या राइट? प्रीमियर लीग है, मतलब आई डोंट थिंक कि ये उससे आपस में ही लड़ लड़ के मैन सिटी आर्सेनल अब compete करना मुश्किल है उनका एग्जैक्टली, दे हैव सिटी अप से। देयर गेम नाउ। या पिछले बार बोल सकता है मैन सिटी वाज द बेस्ट टीम, आई थिंक इवन रियल मैड्रिड जब चैंपियंस लीग जीती थी, आई थिंक नॉट ऑन पेपर बट ऑन द वे दे हाउ दे परफॉर्म, मैन सिटी वाज वेरी गुड। बट मतलब वो अगेन राइट, इट्स बेस्ड ऑन हु लिफ्ट्स द कप, बट स्टिल मैन सिटी वर या वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई वुड से।
Yeah, let's move up to Premier League now. Okay. फर्स्ट जो पहला ही वीक कितना एक्साइटिंग फिक्चर्स है. देयर आर मेनी एक्साइटिंग फिक्चर्स. सिर्फ टॉप 6 के फिक्चर एक्साइटिंग नहीं है, जो बॉटम टीम्स है उनके फिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग है. जैसे वेस्ट हैम वर्सेस विला, तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फिक्चर है, मतलब टॉप 4 टॉप 6 की रेस के लिए. So दिनेश, हाउ आर यू फीलिंग द सीजन इज गोना गो? Thank glad you mentioned that कि हमारे views अच्छे खासे मिल रहे हैं. And I think I have to stress this again, guys. I think there are 30 to 40% of the people who are still watching our videos and you're not subscribing. Please subscribe, please support us. And for the viewers who are watching, thanks for sharing your comments in the YouTube videos. I think it's very fun for us, for me and Paul, to read those comments, and certain things are very insightful. We also take it under our consideration, especially the Liverpool biased one. I think वो actually वो हम लोग clarity करने कह रहे हैं, तो मतलब it's going on a different direction, right? So I think we will set the air straight that we are looking जब week जब start हो जाएगा, we are there to analyze performance, non-biased, and we are going to bash Arsenal as well if Arsenal play poorly, and we were going to bash Chelsea as well. I think पाल तू तो bash करेगा ना Chelsea को, अगर Chelsea poorly खेलेगी तो बहाना तो नहीं मारेगा मैं स्टार्टिंग से ही. नहीं बहाना किस चीज का? पिछले सीजन तो पहुंच बहाना था, तो इस सीजन चेल्सी के पास, चेल्सी हैव नो एक्सक्यूजेस नाउ. कि चेल्सी आर साइनिंग ओसिमन, अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं ट्रांसफर न्यूज में, इफ चेल्सी साइन ओसिमन, वी हैव साइन पेड्रो नेटो, वी विल एंड इफ वी साइन जाओ फिलिक्स, और उसके बाद अब पॉच भी चला गया है. सो नाउ वी हैव नो एक्सक्यूजेस बट टू फिनिश इन द टॉप 4 एंड टू हैव अ ट्रॉफी इन टारगेट, दैट इज एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस लीग. तो कॉन्फ्रेंस लीग तो हमें जीतना है. तो मेरा क्लियर है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन फॉर द सीजन इज टॉप 4 एंड probably go to the third place. मतलब I am aiming for the third place, but expectation is top 4 and Conference League minimum, and go in deep in the FA Cups and Carabao Cups also. So Dinesh, what's your expectation of the season? You tell me, what do you expect with these? Arsenal have signed, probably they will sign Marino also now. हाँ, वो भी so पक्का होने वाला है. So what's your expectation for the season just before the ball kicks in? Yeah, for my expectation तो यही है कि I think Arsenal be the same, I think be the same how you did perform in the league. जो पिछली दो सीजन में जो खेल रहे हो वही करो, but intensity बढ़ाओ, and you have to prolong this intensity to the last. I think No, don't give lectures now. हमें मतलब फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि आउटकम तो यही है ना. एज एन top आर्सेनल four. फैन, हाँ. मैं यही चाहूंगा कि आर्सेनल शुड बी विनिंग दी प्रीमियर लीग दिस टाइम. आर्सेनल, आई वांट आर्सेनल टू विनिंग द प्रीमियर लीग. अगर मैं ये सैंडबॉक्स्ड है, ये मेरा व्यू सैंडबॉक्स्ड है एज अ आर्सेनल फैन कि आर्सेनल प्रीमियर लीग ही जीत जाए. सो दैट इज व्हाट आई विल बी रूटिंग फॉर. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्चर्स, जब लिवरपूल वर्सेस इप्सविच के बारे में, जो भी फिक्चर्स के बारे में जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, देन वी आर नॉट गोइंग टू बी बायस्ड, राइट? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग सैंडबॉक्स, मतलब हम लोग एक क्लोज, मतलब लिवरपूल के अगेंस्ट ही करेंगे. आर्सेनल है तो आर्सेनल के अगेंस्ट वी विल नॉट से भाई देख ले लिवरपूल ने भी तो स्टार्ट ऐसे किया है. आर्सेनल हारी तो आर्सेनल हारी है. आर्सेनल का क्या मिस्टेक्स है, आर्सेनल ने क्यों हारी है, क्यों दूसरे टीम ने क्या आर्सेनल की वीकनेस को हरा दिया, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट? So your expectation now is to win the Premier League. Yeah. That's है ना, मतलब उससे डेविएट नहीं होना चाहिए कि बाद में जाके मैं 3 महीने बाद जाके तो उससे सुनूं कि नहीं हमारी थोड़ी स्क्वाड प्लानिंग थोड़ी वीक रह गई थी, कि अब मरीनो थोड़ा इतना अच्छा प्लेयर नहीं निकला. तो those excuses will not work in December. वो है तो ना? हाँ, वो तो मतलब वो एक्सक्यूजेस क्या तो ना? है नहीं. वो तो मतलब excuses- वो expectation excuses का should तो not time lower निकल गया है. down. वो तो मैं मतलब पहले भी नहीं बोल रहा था कि आर्सेनल पिछले बार भी हारी है. आर्सेनल के मतलब सिटी की वजह से नहीं आ रही है, आर्सेनल की वजह से ही आ रही है. आर्सेनल लॉस्ट एन इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट आस्टन विला, इसलिए आर्सेनल मतलब टाइटल खो पड़ी. मतलब मैंने कभी ये नहीं बोला है कि सिटी ने हरा दिया है हम लोगों को. नो, इवन आई ब्लेम आर्सेनल फॉर नॉट परफॉर्मिंग अगेंस्ट मैन सिटी. जब हमने 0-0 ड्रॉ करवा लिया था तो हमें एक पॉइंट भी हमें ऐसा लगा कि हमने ने बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिश कर लिया है. दोस्त काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड start changing this season. Even if you're going to City, even if you go, okay, you play safe first, but you always try to go and get the 3 points. मतलब ये defensive strategies ये सब अभी नहीं चलेगा, because you're now fighting for the title, and especially if you know that there are some teams, जैसे you can fall back like against Aston Villa or West Ham, if you know that because there's always a problem when these kind of teams play, that there is a chance that you can lose points. So that is why you go against Liverpool 100%, you go against Man City 100%. It's never on a defensive minded तुम्हें जाना पड़ेगा. मतलब you have to be the champions, you have to start playing like champions, जैसे सिटी करते आ रही है.
and that's how what's Pep's motive is, right? He wants to beat everyone, either using his own manipulation skills जैसे वो coaching में करता है, or using some other tactics. So he tries to win. So that is what Arteta is now in that level. I think I would consider him in that level, that he has to go and win against Chelsea, against all the top 6 teams. That he should be the same performer जो एक point लेके भी हमने थोड़ा बहुत celebrate किया. So वो सब क्रिटिसिज्म को मैं नहीं चाहता इस सीजन हो, एंड आई एम नॉट फॉर एक्सक्यूजेस. अगर आर्सेनल को, भाई मैं यही बता रहा हूँ, तुम मतलब यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. हमने आज तक है ना लिवरपूल को एनालाइज किया तो लिवरपूल को सैंडबॉक्स में देखा है. वी आर नॉट कंपेयरिंग लिवरपूल अगेंस्ट आर्सेनल, राइट? वी डोंट हैव द राइट्स टू डू इट बिकॉज आई एम एन आर्सेनल फैन, राइट? सो मैं आर्सेनल को जब मैं बता रहा हूँ तो मैं आर्सेनल के बारे में ही बोलूंगा. मैं ये नहीं बोलूंगा लिवरपूल ने भी स्टार्ट अच्छा नहीं किया, चेल्सी भी हक गया, तो क्या हुआ यार, पॉइंट तो बच गया, राइट? वो प्रीमियर लीग सेंस में वो डजंट मैटर. So now let's deep dive into the matches. Now let's deep dive into the matches. Let's deep dive into the matches. तो मतलब पहला फिक्चर है वो क्या है पाल? So just before we start, we'll start with the season opener जो कल फ्राइडे नाइट को होने वाला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलम. तो बहुत ही मतलब एक्साइटिंग गेम होने वाला है. मैनचेस्टर यूनाइटेड विद ऑल दोस न्यू साइनिंग्स एंड फुलम्स लुकिंग गुड. सो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट पीपल, वी विल हैव नाउ मी एंड दिनेश इज गोना प्ले अ गेम नाउ. तो हम दोनों है ना एक प्रिडिक्शन टेबल डिजाइन करेंगे जिसमें जो टॉप 6 के जो मैचेस होंगे ना उसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे इन ऑल आवर प्रीव्यूज की प्रिडिक्शन क्या होने वाला है इस मैच का. तो अगर एग्जैक्ट स्कोर प्रिडिक्ट कर दिया तो 3 पॉइंट्स हैं. अगर तुमने रिजल्ट सही प्रिडिक्ट कर दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा, और जो अगर तुमने गलत प्रिडिक्ट किया तो 0 है. तो इस तरीके से ना सीजन के एंड में आफ्टर 38 गेम वीक्स, ठीक है, वी विल एड इट ऑल अप कि किसके कितने पॉइंट बने, कितना किसका करेक्ट स्कोर्स आया एंड हाउ एवरीवन इज फेयरिंग अप. ठीक है दिनेश, रेडी फॉर द गेम? हाँ, कौन जीतने वाला है? हाँ मैं तो रेडी हूँ ब्रो. ये तो अलग से ही तूने फैंटेसी प्रीमियर लीग लगा दिया, रंगा एंड पॉल फैंटेसी प्रीमियर लीग लगा दिया. या तो और जो जीतेगा ना फिर उसको दूसरे को है ना जो वो चाहेगा वो पार्टी देनी पड़ेगी. ठीक है, मतलब दैट्स द गेम. तो कुछ तो मतलब इनाम होना चाहिए ना लास्ट में जीतने का. Yeah. So let's start with Dinesh, Manchester United Fulham. So how season opener looking for you? Season opener कैसे start होने वाला है तेरे हिसाब से? क्योंकि हमेशा सीजन ओपनर है ना थोड़ा मतलब सब रश में होते हैं क्योंकि एड्रेनलिन हाई सबका जो टीम खेलने आती है. और फ्राइडे नाइट की बात अलग है. देखो याद है आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड का मैच हुआ था जब ब्रेंटफोर्ड जस्ट प्रमोट होके आई थी और ब्रेंटफोर्ड थ्रैश्ड आर्सेनल उस मैच में, फ्राइडे नाइट के मैच में. तो फ्राइडे नाइट इज नॉट अ इजी फिक्चर देखा जाए तो how do you think the match is gonna go? I think मतलब दोनों टीम्स मतलब काफ़ी, I mean Man United, I know from what Man United I've seen and what the preseason is, I think they are going to sit back and not dominate the ball. I think Marco Silva को वो पता है and he's going to also play the same kind of a games with them कि we are going to play them in the counter. So I think it's going to be a dull game because the stakes क्योंकि बहुत ज़्यादा है and also there are new players coming in. मैंने जहाँ तक मैंने सुन रहा हूँ, जहाँ तक मैंने न्यूज़ पढ़ा है, आई थिंक डेलिट इज ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेनिंग सेशन विद द फर्स्ट टीम, राइट? एंड ऑल्सो आई थिंक डेलिट इज देयर. आई थिंक माजुरावी स्टार्ट नहीं करेगा बट आई थिंक डेलिट तो स्टार्ट करेगा. आई थिंक ही इज़ गोना पार्टनर अप विद मतलब इनका पूरा डायमेंशन बदल सकता है. या मतलब टेनाग इज अगेन सेफ मैनेजर, तो इतना तो सेफ मैनेजर नहीं है वो डिफेंस के हिसाब से क्योंकि उसने कैसेमीरो को भी सेंटर बैक में खिलाया है काफ़ी दिन. तो आई वुड से डेलिट विल बी प्लेइंग एंड इट्स आई मीन इट्स बेसिकली इफ Zirkzee is playing I would say they will go for the win. But if Zirkzee is not playing, go for the win in the sense they will have something to hold up play वो करके maybe they will create something. But if there is no Zirkzee, they will quite rely only on the counter-attacking performance. And you know Fulham, right? I think from Fulham is basically a team which likes to keep the ball because उनको अच्छा लगता है and they have exciting players as well. Alex Iwo भी है और उनका मुनीज बहुत अच्छा स्ट्राइकर है. अपना विलियन दोनों का Willian. And what about Smith Rowe? Smith Rowe is also a welcome addition to the team and he's also again scored in the preseason for Fulham. So I think it's an exciting match. I'm not going to reveal the score now, so I want to hear from you what insights you have कि टेनाग क्या मतलब कैसे किस हिसाब से वो अपनी टीम को they have some exciting players now. फुलम को अगर तू देखेगा उनका लाइनअप तो they have pretty exciting players. उनका जो लेफ्ट बैक है रॉबिन्सन, so I am a fan of him. वो बढ़िया प्लेयर है वो रॉबिन्सन. वो अप एंड डाउन उसका जो इंजन है that is pretty good. तो they have signed अडामा ट्राओरे also. वुल्स वाला ट्राओरे था ना, तो वो भी फुलम में आ गया अब तो वो है. तो उनके पास ऑप्शंस अच्छे हैं. मतलब थोड़ा राहुल हिमेनेज तो अब he is done now I think bro. But you know what the biggest miss is Paulinho bro.
He was पालिनिया one of वो the- तो है, पालिनिया का उनका उन्होंने कोई साइन नहीं किया है पालिनिया के लिए अभी तक, रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ भी। उनका मिडफील्ड में भी कोई अच्छा नहीं है, डिफेंस भी मेरे को इतना अच्छा लग नहीं रहा है उनका। उनका डिफेंस डिफेंस वाला बंदा क्योंकि भी चला गया ना, टोसिन भी चला गया ना, टोसिन भी टोसिन। चेल्सी आ गया या सो मतलब तेरे को क्या लगता है कि मतलब यू वर सेइंग, आई थिंक पिछले एपिसोड में तू बोल रहा था कि यार मैन यूनाइटेड का प्ले स्टाइल आ गया, मतलब आई वाज इवन सरप्राइज व्हेन यू सेड दैट। सो मतलब आर यू कॉन्फिडेंट दैट मैन यूनाइटेड आर गोइंग टू फॉलो अ प्ले स्टाइल दैट मतलब इफ देयर इज अ प्ले स्टाइल, what are they if going I to am do? if I am a Manchester United fan, I would be worried that if we play that we play against City, अगर वही सेम प्ले स्टाइल रहा जैसे हम सिटी के अगेंस्ट खेले थे, तो आई वुड बी वरिड इफ आई एम ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन उस वे में, क्योंकि फुलम के अगेंस्ट यू शुड डोमिनेट। उनके पास मतलब एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं और उनका पोजीशन स्टाइल प्रॉब्ली तेनाक से अच्छा है, क्योंकि जो क्यूट पासेस वो खेलते हैं ना मिडफील्ड में, पर वो हो सकता है कि पालिनिया वाज मेजर फैक्टर ऑफ इट। तो पालिनिया के जाने के बाद वो कितना चेंज करेंगे स्टाइल, प्रॉब्ली दे विल चेंज देयर स्टाइल। आई डोंट नो कि फर्स्ट मैच देखने के बाद ही पता लगेगा कि हाउ फुलम इज फेयरिंग अप। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड should dominate in this case, तो उनको डोमिनेट करना ही चाहिए, क्योंकि नाउ इफ यू सी देयर फ्रंट लाइन, अगर जक्सी खेलता है तो ईदर साइड दे हैव अमाद एंड रैशफोर्ड, ठीक है, तो दोनों मतलब रनिंग विंगर्स हैं। क्योंकि अगर जक्सी अगर तू बोले कि फर्मिनो की तरह ड्रॉप डीप कर जाएगा, तो यू हैव योर माने एंड साला टू रन डाउन द विंग्स एंड स्कोर and take those positions. उनका तो मिडफील्ड देखेगा तो देयर मिडफील्ड विल बी कैसेमिरो, माइनो एंड ब्रूनो। आई थिंक इट्स अ डिसेंट मिडफील्ड ब्रो, इट्स अ डिसेंट मिडफील्ड टू डोमिनेट द बॉल। पर विल दे डोमिनेट द बॉल, आई डोंट नो। विल टेनेक स्टाइल की जो वो चेंज करेगा या नहीं, क्योंकि ये सारे रीबिल्ड में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बात कर रहे हैं ना कि हमारा डैन एशवर्थ अच्छा है, हमारा मतलब कोच से ऊपर वाले जो लेवल्स हैं वो सुधर रहे हैं बहुत ज्यादा, साइनिंग्स थोड़े बेटर हो रहे हैं और जो डिसीजंस हम ले रहे हैं ऑफ द फील्ड वो अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि उनका भी एक एड भी आया था जर्सी के साथ, वो एड बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा अगर तूने देखा है तो जो ऑफ द फील्ड वाले डिसीजंस हो रहे हैं ना वो अच्छे हो रहे हैं। बट ऑन द फील्ड उनको वरी सिर्फ एक ही है कि इज टेन हाग इज गुड इनफ, क्योंकि जो लास्ट पीस है ना जिक्सॉ का टेन हाग, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो काउंटर अटैकिंग ही खेलने वाले ब्रो, वो काउंटर अटैकिंग ही खेलेंगे मेरे हिसाब से। Yeah. I think it's मतलब Man United जो ये गेम है, I don't think they're going to impose their identity. I mean, it's not because I'm an Arsenal fan again criticizing Man U. It's because we kind of accept how their play style is. So their wingers are the only reason they're going to play. So बहुत fast wingers हैं, तो इसका मतलब है they can counter easily. And their team is पूरा का पूरा built for counter attacking. I think they're going to have their defensive backline very far away, that is almost inside the D, मतलब near their own D. एंड उससे क्या होता है, जो लाइन है डिफेंसिव लाइन जब पीछे हो जाता है तो यू कैन डोमिनेट द बॉल, राइट। सो मतलब डिफेंस लाइन को स्टेप अप करके आगे बढ़ना कॉम्पैक्ट होना पड़ता है तुम्हें, कॉम्पैक्ट होना पड़ता है, तब जाके व्हेन यू कैन प्ले पासेस बिटवीन द मिडफील्ड्स एंड यू कैन नो ड्रिबल बिटवीन द मिडफील्ड, मतलब मिडफील्ड गैप को निकाल के तुम कर सकते हो। आई डोंट थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग टू डू दैट, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग because this is what the Manchester United we have seen under Erik ten Hag, right? It's not like the same thing has happened in preseason as well. The same thing we have seen in Community Shield as well. It's not like they have tried to pass their way out. It's basically long balls or trying to create some rifts. They target directly their back end. मतलब ऐसा है कि Man United don't want any of their midfield presence in front of them. तो तब उनका नहीं चलेगा मिडफील्ड, मतलब ऑपोजिट जो अगर फुलहैम के जो मिडफील्ड है अगर उनका चढ़ गया है उन पे, सो इट्स नॉट देयर जॉब टू पास इट थ्रू देम। सो व्हाट दे विल डू, दे विल पास दीज ह्यूज पासेस टू, नहीं तो ओनाना इसीलिए है ना वो ब्रो, तो सही बोल रहा है कि ओनाना, क्योंकि वो ओनाना को इसीलिए रखते हैं कैसेमिरो वो पास करने नहीं वाला है, Exactly. और वो कुछ करेगा भी तो थोड़े बहुत वो करता है, और कैसेमिरो के पास वो डिसेंट पिंक है। पर ओनाना का उन्होंने इसीलिए रखा है ना कि वो लेफ्ट फुट राइट फुट दोनों से मतलब वो भर सकता है। आई थिंक मतलब वो विंग्स में अमाद भी इज अ गुड रनर, रैशफोर्ड इज अ गुड रनर, गर्नाचो इज अ गुड रनर, तीनों में से किसी को भी खिला लो। तो आई थिंक वो उनका जो अटैकिंग प्राउस है ना वो विंग से ही आने वाला है, लेकिन डिफेंसिवली आई थिंक दे आर प्रीटी वीक। अगर वो सेंटर बैक ऑप्शन पे किसी को भी खिलाते हैं कि वो मतलब डिलीट को खिलाते हैं या फिर मैगवायर को खिलाते हैं या जॉनी एवेंस को खिलाते हैं, whomever they play, या फिर लिसांड्रो को खिलाते हैं, कोई भी उनका सेंटर बैक फास्ट नहीं है। लिसांड्रो भी फास्ट नहीं है, डिलीट भी फास्ट नहीं है, मैगवायर भी फास्ट नहीं है। तो अगर वो हाई लाइन खेलेंगे तो वहीं वो फंसे, वहीं वो चुत गए सेंटर बैक से उनके। और जो उनकी जो विंगर सॉरी फुल बैक्स हैं वो भी मतलब
गोइंग डाउन द अप अच्छे हैं, पिच अच्छे हैं, लेकिन जो पीछे की साइड है वो उनका बहुत खराब है। जो डिफेंस है उनका बहुत ज्यादा खराब है। डेलो का खराब है, मलासिया प्रॉब्ली खेलेगा नहीं, शॉ वैसे ही इंजर्ड है, तो आई थिंक कौन खेलेगा लेफ्ट? मजरा भी खेलेगा क्या? मैजरोवी तो नहीं खेलेगा मेरे हिसाब से, जैसे उन्होंने खेला था कम्युनिटी शील्ड में। अच्छा, प्रॉब्ली जॉनी एवंस, नहीं सॉरी, डिलिट, मैग्वायर एंड लीचा, लिसांड्रो मार्टिनेज। पर लिसांड्रो मार्टिनेज ही वाज नॉट कंफर्टेबल इन द फुल बैक रोल, क्योंकि उसको गेम अपने आगे चाहिए ब्रो। वो पंचिंग पासेस जो खेलता है ना, उसको गेम अपने आगे चाहिए। ही वांट्स द गेम अहेड ऑफ हिम, तो वो पासेस नहीं खेल पाता ना फिर वो। देन यू हैव द ऑप्शन टू प्ले द बैक पास टू सेंटर बैक, जो वो इन्वर्ट करके आता है लेफ्ट बैक से। तो वो चीज आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि उनके विंग्स अच्छे हैं पर उनके विंग्स खराब भी हैं एट द सेम टाइम इन डिफेंसिव एरियाज। तो गोल्स भी उनके वहीं से आने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो फुलम के पास चांस है, दे हैव अ प्रीटी डीसेंट चांस टू ड्रॉ द गेम एटलीस्ट। सो व्हाट डू यू थिंक दिनेश? I think for Fulham it's a game of opportunities, मतलब opportunities taken, so they have to take their opportunities। मतलब मैं बता रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ तुम लोग 1000 opportunities create कर सकते हो। The thing is you have to score। I think we have seen the same against the Wolves starter। अगर तुम्हें पिछले वाला सीजन याद है, Wolves के साथ उन्होंने कैसे, Wolves ने कितने सारे चांस बनाए थे, but कूना नूनेस के से भाग रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, they couldn't score। So it's going to be a similar story। and हम लोग स्पेशली हाई लाइन क्यों नहीं खिला सकते अगेंस्ट एटलीस्ट फुलम? इफ यू डोंट हैव दीज ब्यूटीफुल, मतलब वंडरफुल मिडफील्डर्स और सेंटर बैक्स हु कुड पास, और जो मिडफील्डर्स जो उनके पास हाफ टर्न एबिलिटी है और व्यू है, अगर वो टीम तुम्हारे पास नहीं है, तुम लोग फुलम के अगेंस्ट हाई लाइन खेलोगे। जस्ट रिमेंबर व्हाट दे डिड टू टॉटनहम। Okay, I think they will, because their wings are very fast। नहीं, क्योंकि उनके पास एक चीज है कि है ना, रनर्स है विद द बॉल। क्योंकि विद द बॉल रनर्स उनके पास है सब। ईओबी विद द रनर्स बॉल है, ये स्मिथ रो विद द रनर बॉल है, विलियन विद द रनर बॉल है, और उनके पास जो मुनीज स्ट्राइकर, ही हैज अ गुड फिनिश ऑन हिम आई गेस। तो वो चीज उनके पास बहुत सही है। तो आई थिंक दे कैन गिव मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रबल। तो दिनेश, तेरे प्रेडिक्शन क्या रहेंगे, बता। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? मेरा प्रेडिक्शन तो इज बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग। आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेयर व्हाट ओल्ड ट्रैफर्ड ब्रिंग्स। आई थिंक फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन and it's in Old Trafford, and again and it's not like the पिछले सीजन में थोड़ा बहुत मतलब मच चल रहा था, बट ये वाला सीजन आई थिंक द मैन यूनाइटेड फैंस आर रेडी। बिकॉज आई हैव टू स्ट्रेस दिस आउट पाल, तूने जो एक्चुअली जो एड देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला, वन ऑफ द बेस्ट एड्स आई हैव एवर सीन। आई थिंक आर्सेनल का भी अच्छा था, न्यूकैसल का। आई थिंक एडिडास ने एक, मतलब आई डोंट नो, दे हैव साइंड अ क्रिएटिव इंजीनियर, उसने सेम। पर वो चेल्सी की जर्सी कितनी गंदी बना रहे हैं ब्रो, एडिडास वाले। नहीं, वो तो नाइकी है, सॉरी एडिडास अच्छा है इसमें। वन ऑफ द, आई थिंक I we need to talk about jerseys now actually, just for a couple of minutes। जो एडिडास को जो जर्सी का जो कमर्शियल था न्यूकैसल का, बाबारे, वन ऑफ द बेस्ट अगेन। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कमर्शियल फॉर आर्सेनल एज वेल, एंड व्हाट अ वंडरफुल कमर्शियल। आई थिंक आई वुड रेट मैनचेस्टर यूनाइटेड 1, I would rate I think Newcastle as 2 and Arsenal as 3। I think Arsenal का भी बहुत अच्छा था ओरिजिनल्स करके। and I think the jerseys are beautiful। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जर्सी तो मेरे को ऐसे मन है कि मैं खुद खरीद लूँ। बहुत अच्छा जर्सी है। और आर्सेनल का जर्सी तो और गजब है, थर्ड किट, वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थर्ड किट। और इसमें सेम नाइकी में तो देखिएगा, नाइकी हग रहा है। नाइकी ने किसी की जर्सी अच्छी नहीं बनाई इस न्यूकैसल का जर्सी देखा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्सी फॉर न्यूकैसल। मतलब ऐसे लग रहा है कि चेल्सी, इट्स टाइम टू डिच नाइकी। भले चाहे नाइकी अमेरिकन है और वो एडिडास जर्मन है, और हमारे ओनर्स जो हैं वो अमेरिकन है, पर इट्स टाइम टू डिच नाइकी एंड गो फॉर एडिडास। एडिडास की जर्सी चाहिए ब्रो। जर्सी गेम ने और बढ़ा दिया। और एक है कि अभी एडिडास ओरिजिनल्स का आ रहा है, सो मतलब ये आगे दे हैव लेवल्ड अप द गेम नाउ। इट्स नॉट लाइक वही। लेकिन चेल्सी उसमें क्या ट्राई कर रहा है कि वो ये तुम्हारा जॉर्डन आ जाए नाइकी के साथ हमारे पास। हाँ, जॉर्डन आ जाएगा तो वो बड़ी बात हो जाएगी, जो सिर्फ अभी पीएसजी को शायद करता है जॉर्डन। या आई थिंक द जर्सीज गेम आर अप नाउ। आई थिंक बायर्न म्यूनिख का बहुत अच्छा है। व्हाट अबाउट रियल मैड्रिड का जो थर्ड जर्सी जो ब्लैक कलर है, वाह, मतलब ऑलमोस्ट ब्लैकिश जो ग्रे है। मैं इस सीजन में खरीदने वाला हूँ 3-4 चेल्सी का वाइट वाला खरीद रहा हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैं मन कर रहा है कि मैं खरीद लूं, मतलब ऐसे शो पीस में खरीद लूं, क्योंकि इतना अच्छा है यार। मतलब ये आई डोंट थिंक सो दिस गोना लास्ट टू मच, बट आई जस्ट वांट टू हैव दीस जर्सीज विद मी। मेरे को एक बार पीएसजी का हमेशा जर्सीज बहुत अच्छा लगता है, बट इस बार अच्छा नहीं है, तो मैंने बट डायरेक्ट राइवल्स की जर्सी खरीदना इज डायरेक्ट राइवल्स थोड़ा सा वो है, ब्लास्फेमी। इट्स ब्लास्फेमी। आई थिंक आई कैन maybe I can gift it to my wife, right? Maybe she can wear, maybe I can but I'm saying that it's a good gift. Yeah. So let's back to the predictions, bro. Let's back to the prediction. I think it's about, I'm just saying it's not about Erik ten Hag, the first game.
I think it's about Old Trafford and its fans and how they support the team in transition in year. So I would predict Manchester United winning 2-1. Okay, so I'm noting down your score. It's 2-1. Yeah. मैं मतलब I जब would, I मैंने ये would, मतलब ये बता देता हूँ yeah, पहले जब मैंने ये स्कोर को अपने मुंह से जो बाहर निकला ना तब लग रहा yeah. कि अरे मैनचेस्टर यूनाइटेड को तो साल लग जाएगा 2 गोल मारने के लिए. No, I would think कि है ना टैनक का जो प्लेइंग स्टाइल है मतलब सडनली उनके सेंटर बैक्स चेंज हो रहे हैं मेरे हिसाब से उनको जो एकदम से अगर वो डिलीट को खिलाते हैं और मैगवायर को खिलाते हैं और लिसांड्रो मार्टिनेज को लेफ्ट पे खिलाते हैं सो उस केस में डिफेंस इज प्रीटी वीक आई डोंट ट्रस्ट देयर डिफेंस एंड आई अटैक फुलम आई मतलब होप है मेरे को थोड़ा बहुत फुलम के अटैक से कि वो थोड़ा डिसेंट है मतलब रेट करता हूँ मैं उनके अटैक को तो आई वुड से 1-1. So let's focus on the biggest game of the weekend. I think this is one of the best starts, I would say. And I think अगर ये चेल्सी मतलब मैं बोल नहीं बोल रहा हूँ तो अगर it was been in a previous जब peak चेल्सी था I think this game would have been a bonkers. And let's start. Chelsea versus Man City. Chelsea are facing at Stamford Bridge the Premier League champions. Bro, if you watch our last season matches of Chelsea versus Man City, दोनों ड्रॉ थे दोनों Goal ड्रॉ galore. थे या Goal galore. एक पहला मैच जो हुआ था वो 4-4 था वो तो सबको याद है वो I मैच think it's more of a Pochettino thing than a Chelsea thing, bro. I would say. ना नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि प्लेयर्स तो सेम है ना मतलब वी हैव एडेड पेड्रो नेटो एंड ऑल बट बाकी तो बेस तो सेम ही है अभी बेस चेंज नहीं हुआ है But base change, why the ideology is completely different, bro. या Enzo आइडियल Maresca तो नहीं का नहीं, मैं है, वैसे Enzo- बता रहा हूँ कि इट नाउ जो वही मैं बताने वाला हूँ कि पिछली सीजन जो मैच हुआ था 1-1 और 2-2 था शायद सेकंड मैच या 1-1 था दो इसमें से एक स्कोर था और फर्स्ट मैच तो 4-4 हुआ ही था वो तो बॉन्कर था मैच कोल्ड पाल्मर लास्ट मिनट पेनल्टी अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब तो वो पीटर डोरी का वो आया था ना मैन सिटीज बॉय हैज बिकम चेल्सीज मैन वो लास्ट में जब उसने गोल मारा था तो दैट वाज अ वंडरफुल कमेंट्री पर मैं बोलूंगा कि इट विल बी ए टैक्टिकल मैच मतलब वैसा मैच नहीं होने वाला जिससे लास्ट सीजन हुआ था ना पॉच ने जो मतलब क्या बोलते हैं बास्केटबॉल मैच टाइप बिल्कुल फ्लाइंग हाई जो मैच था वैसा नहीं होने वाला बिल्कुल बॉन्कर्स ऑफ ए गेम नहीं होने वाला इट विल बी टैक्टिकल मैच दोनों टीमें बॉल कीप करने का ट्राई करेंगी और दोनों पोजीशन गेम खेलेंगी मरेस्का का स्टाइल पता है कि इधर कुकुरेला विल इन्वर्ट और इधर गस्तो विल इन्वर्ट और ब्रीज जेम्स खेलेगा नहीं तो इफ आई टेल यू द प्रेडिक्टेड लाइनअप बेसिकली तो सांचेज इन द गोलकीपर गोल खेलने वाला है तो योर सेंटर बैक्स विल बी फोफाना एंड लिवाई कोल्विन एंड हेट दिस आई रियली हेट दिस ब्रो सीरियसली मतलब लिवाई कोल्विन और फोफाना मतलब अब मैं वरीड हूँ कि मतलब हालैंड क्या प्रॉब्ली मतलब जो क्या कौन सा चार्जेस मॉलेस्टेशन चार्जेस होने ना वो आने वाले हैं हालैंड पे इस गेम के बाद क्योंकि फफाना को तो वो बुली कर देगा ब्रो फफाना को ही विल मॉलेस्ट एंड गो सीरियसली बोल रहा हूँ मैं फफाना को तो वो करके निकल जाएगा और अगर वो लिवाई कोलविल की साइड रहा तो लिवाई कोलविल वैसे ही वीक है मतलब आई डोंट नो कि वो उसको विंग्स में खेलना वैसे ही नहीं आता लिवाई कोलविल को अगर तो विंग उसको बोलेगा ना विंग में जाके डिफेंड कर फ्लैंक्स में जाके तो वो वहीं हक देगा तूने भी मैचेस देखे होंगे तो आई एम नॉट एट ऑल एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट पर कॉन्फिडेंट में अगर तुम टोसिन और बादशाह भी रख देते ना तो भी नहीं होता मतलब कोई भी तो कॉम्बिनेशन रख ले सेंटर बैक्स का हिसाब से तो हाँ लीग हो ही. हाँ मतलब 5 सेंटर बैक से अगर हम चालावा को मिला ले तो 5C2 कितना होता है 15 तो वो कॉम्बिनेशन तो कितना भी रख ले वो होने ही नहीं वाला है सब बेकार है 15 के 15 कॉम्बिनेशन बेकार है तो बट हमारा जो फुल बैक्स एरिया है मालो गुस्टो एंड कोकरेला वो बहुत अच्छा होने वाला है और अगर हम अच्छा प्रॉब्ली खेले वैसा तो आर स्टार्टिंग लाइन विल बी एंजो लाविया काइसेडो एज अ मिडफील्ड और पेड्रो नेटो एनकुकू सॉरी पेड्रो नेटो जैक्सन और लेफ्ट में पाल्मर सेकंड हो सकता है कि तुम लाविया को हटा के एनकुकू ऐसे नंबर 10 खिला लो तो ये दो ऑप्शंस में चेल्सी खेल सकती है तो इट्स इज अ डिसेंट लाइनअप चेल्सी मतलब वी विल गिव मैन सिटी अ फाइट वी विल गिव देम अ मैच उसमें मैं मना नहीं कर रहा पर लेकिन मैन सिटी कुड बी ओवरवेलमिंग फॉर अस और जो हमारे सेंटर पे बैक्स है उनकी जो अगर उनका बोजो जीन आने लग गया तूने वो गैब्रियल का बोजो जीन था ना जो 2 साल पहले वो इन दोनों में हमने अमेरिका में देखा ही है अगर तूने चेल्सी के हाइलाइट्स देखे हो लिवे कोलविल में तो बहुत है. सारे के सारे गोल वैसे ही हुए थे कि तुमने स्ट्राइकर को पास दे दिया और वो लेके हाँ. भाग गया सारे तूने अगर हाइलाइट्स देखी होगी तो मैड्रिड के अगेंस्ट भी सारे गोल वैसे ही विनी को बॉल देने विनी लेके गोल मार दिया उसने तो आई डोंट नो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल बट ये चीज है कि इफ देयर इज अ चांस टू बीट द सिटी इट्स नाउ क्योंकि सिटी को अभी पीक नहीं है सिटी अब जस्ट जेल हो रही है थोड़ी थोड़ी डिब्रो ने अभी थोड़ा
तो उसकी बॉडी खुल रही है, बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा भी भागना स्टार्ट कर रहा है, रॉड्री अभी इतना अभी आया नहीं है, ज्यादा खेल भी नहीं रहा है वो, अभी उसने ज्वाइन किया होगा प्रॉब्ली रॉड्री ने। तो यू हैव चांसेस, यू हैव चांस टू गो अहेड, मतलब गो विद अ फुल हार्ट, मतलब गो एग्रेसिव एंड हैव अ चांस टू विन द मैच। मेरे पास है, मतलब वी हैव चांस टू विन द मैच, आई विल से दैट। व्हाट डू यू थिंक दिनेश? I think okay. I mean, I would say, I mean, in a capsulation, this match is not about Chelsea. This match is about Manchester City because it's. I don't think Chelsea is in a state of place where they could challenge the champions. So I would say it's how City starts and how, I mean, irrespective of how Chelsea plays doesn't matter. So it's going to be a draw. मतलब बहुत अच्छा Chelsea खेलेगी. It could be maximum for draw. मतलब और City could win it anyway if even they didn't play. So it's not about what Chelsea does in this match. It's basically what, I mean, Chelsea have to play anyway. But I mean in a metamorphical sense, I'm just saying कि it's going to be about Man City more than what Chelsea is doing. So इन द सेंस कि चेल्सी का जो मतलब जो कोहिजन है वो अभी हम लोग को देखने को मिलेगा पहले तो, बिकॉज इट्स अ न्यू मैनेजर एंड आई डोंट थिंक, आई एक्सेप्ट दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गोल गलोर, राइट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो मैनचेस्टर सिटी है उनका जो स्टार्टिंग वाला होता है वो हमेशा उनका धीरे ही होता है. I think they are very vulnerable in the starting of the season. वही Always. अगर Because मैन people सिटी को have कभी not- हरा सकते हो तो वो अभी हरा सकते हो, दैट्स ऑल। I think जब हम अपन भी फुटबॉल मैचेस जब खेलते हैं, जब अपना सीजन भी जब स्टार्ट होता है, या मतलब जब हम लोग कॉलेज में जब खेल रहे थे, याद है जो स्टार्टिंग के जो मैचेस होते हैं वो हमेशा ढीला ढाला होता है. जैसे योर लंग कैपेसिटी और जो तुम्हारा जो चेस्ट जो हार्ट का जो बीट है वो उसको पकड़ने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है. सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर सिटी प्लेयर्स एज वेल, एंड इट्स गोइंग टू बी फॉर दिस ऑलमोस्ट मेनी प्लेयर्स. सो इट्स गोइंग टू टेक 3 or 4 गेम्स फॉर देम, बिकॉज उनका जो प्लेयर्स हैं काफ़ी लोग बाहर गए हैं एंड वो लोग आए काफ़ी लेट है. और उन्होंने प्री सीजन में बच्चे ही खिलाए हैं मेनली, उन्होंने जो मेन प्लेयर्स हैं अगर वो कल जो खिलाने वाले हैं, हाँ. वो उन्होंने प्लेयर्स खिलाए नहीं है, उन्होंने बच्चे ही खिलाए हैं, मैकेटी, राइली, रिको लुइस, ये ऑस्कर बॉब, एंड वन मोर इन न्यूज़ व्यूअर्स कि ऑस्कर बॉब इज इंजर्ड. ऑस्कर बॉब इज, उसका लेग ब्रेक हो चुका है, ही इज इंजर्ड, ही प्रॉब्ली आउट फॉर द सीजन नाउ. अगर वो आएगा भी तो मार्च अप्रैल में आएगा, और उस टाइम मतलब उसको मैच फिटनेस आते आते तो तेरे को पता है लेग ब्रेक के बाद तो एक सीजन लगना ही है ब्रो. तो मैनचेस्टर सेविनियो खेल सकता है उसकी जगह. तो बट रियली फील फॉर हिम ब्रो, सीरियसली ऑस्कर बॉब के लिए, कि वो जो आ रहा था ही वाज अपकमिंग. मतलब जैसे पिछले साल पाल्मर का सीजन हुआ था ना, पाल्मर वाज अप एंड अपकमिंग, तो ऑस्कर बॉब इस सीजन था उसके में. और प्री सीजन में तूने देखा ही उसने क्या मतलब पेला है सबको. मैं इसमें ये वाले मैच में हमने कम्युनिटी शील्ड वाले मैच में भी देखा कि व्हाट है प्लेयर ही हैज बीन. तो रियली फील फॉर हिम कि मतलब उसके साथ बुरा हुआ. वी नेवर विश इंजरीज ऑन एनीवन, चाहे कितना ही अच्छा प्लेयर हो, पर और ऑपोजिट टीम का भी हो, पर प्रे फॉर हिम, प्रे फॉर ऑस्कर बॉब, pray for his speedy recovery. So I think you know how Chelsea is going to play. Chelsea का जो है जो play system है वो वैसा का वैसा ही है. I think it's going to be very traditional. It's going to be तेरे हिसाब से किसको, I'll ask you कि तेरे हिसाब से फ्रंट फोर कौन होना चाहिए, फ्रंट थ्री या फ्रंट फोर, मतलब बैक हटा दे, फुल बैक्स पता है वो हटा, तेरे हिसाब से फ्रंट सिक्स कौन खेलना चाहिए तेरे हिसाब से? व्हाट शुड बी योर स्टार्टिंग लाइनअप इफ यू आर एनजो? I think it's going to be the same. I think Enzo. नहीं, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए. I think go for the traditional makeover. Don't do anything funny right now. Go for traditional makeover. I think start Nkunku, उसको ही स्ट्राइकर खिलाना. Don't play Nicholas Jackson. Cole Palmer, Pedro Neto है available, अगर fit है तो Pedro Neto, नहीं तो go with Modric. Play with the safer side and go for, क्योंकि तुम्हारा जो Pedro Neto fit है वो तो तुम्हारा है ही, मतलब you are going to be concentrating on those 3 people right now. एंड क्योंकि तुम्हारा बैक खोखला है. सो आई वुड से प्ले ट्रेडिशनल फुटबॉल. डोंट डू एनीथिंग फैंसी. मतलब तुम डिफेंड करो जितना डिफेंड करना. आई थिंक मैं वही रखूंगा. आई विल प्ले इट वेरी ट्रेडिशनल अगेंस्ट सिटी. आई वोंट बी लाइक अ वेरी ओपन जो पोचेटिनो करता है या दूसरा मैनेजर कर सकता है. इसलिए शायद आई एम नॉट द मैनेजर, बट आई वुड एक्सपेक्ट मनस्का टू प्ले अ वेरी ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फुटबॉल. नथिंग फैंसी, नो इनवर्ट, नो ये, नो मो. भाई यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर रोल्स. जस्ट प्लीज
don't बट आई lose the थिंक ball वो from the back. मरेस्का थोड़ा बेटर कोच है पोचेटिनो से इस वे में, तो क्योंकि पोचेटिनो कॉनर गैलेगर और वो बेंच आई बेन थिंक इफ चिलवेल यू को गोना खिला रहा प्ले था। फ्रॉम द बैक, आई थिंक यू गोना सफर. आई थिंक ये मैंने काफी चीज प्री सीजन में भी देख लिया और पिछले सीजन में भी देख लिया. आई थिंक तुम्हारा एक गोल तो बिकॉज ऑफ डिफेंसिव लैकिंग बिटवीन दी पासेस जो तुम लोग नहीं कर पाते हो मिडफील्ड को डायरेक्टली, तुम उसमें तो तुम 100% तुम्हारा एक गोल तो है ही. आई थिंक आई हैव सीन एन अगेंस्ट ऑलमोस्ट बिकॉज एंड ऑल्सो सिटी का जो प्रेस है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाँ वन ऑफ द बेस्ट प्रेसेस आफ्टर लिवरपूल. आई थिंक सिटी हैज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसेस. आई थिंक यू गोना लूज द बॉल इफ यू गोना पर अगर प्रेस. हरा सकते तो अभी हरा सकते, क्योंकि सिटी के पास चांस जो है वो बच्चे खेलेंगे। सिटी विल बी स्टार्टिंग विद डी ब्रूयने एंड ऑल, क्योंकि डी ब्रूयने अभी जस्ट आया है नहीं, तो केडी भी खेलेगा, केडी भी खेलेगा. आई थिंक केडी भी खेलेगा. आई थिंक ही पर इज नॉट मैकेटी और गोना राइली स्टार्ट खेलने वाले हैं रॉड्री, मेरे। ही इज नॉट गोना स्टार्ट रॉड्री, और ही हाँ इज नॉट गोना स्टार्ट आई थिंक दी आई थिंक बर्नार्डो उनका सिल्वा। डिफेंस तो वैसे वैसे ही. आई थिंक ही इज नॉट, आई थिंक रॉड्री इज द बिगेस्ट मिस, राइट. वो निको लुइस को खिला लेगा, बट रॉड्री इज बहुत खतरनाक जीवन है. रॉड्री को बस प्रेजेंट ही बहुत अच्छा प्लेयर है वो, लेट हिम बी प्रेजेंट. आई थिंक पेप उसके ऊपर, क्योंकि पेप ने काफ़ी रिस्क लिए रॉड्री के ऊपर ना. रॉड्री कल खेलता है तो आज भी उसने खिलाया 90+. तो मतलब पेप ने कभी भी रॉड्री को मतलब मतलब ठंडा ही जाके पी ले, वो कभी नहीं बोला उसने. हाँ अगर पर उसका रॉड्री कल नहीं खेलेगा प्रॉब्ली कल वाला मैच। मतलब इट्स वेरी, मतलब ऐसे रॉड्री का खुद का बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाई मैच सीरीज में कि मैं पूरा थक चुका हूँ, मैं भाग नहीं पाता हूँ. फिर भी देखना उसका अगले दिन उसको पूरा मैं 90 मिनट खिलाएगा. तो मतलब रॉड्री ऐसा बंदा है कि आई थिंक इफ ही इज गेटिंग टर्न्ड ओवर बाय हिज कोच, आई थिंक ही प्लेज. सो दैट्स व्हाई आई एम नहीं स्टिल थिंकिंग पर दैट वो ही विल प्ले. पैप करता है क्रंच टाइम पे, हाँ, क्रंच टाइम पे फैब के एग्जैक्टली, बाद। तभी तो. अभी स्टार्टिंग में वो सबको छूट देता है कि स्टार्टिंग में तुम आराम से फिटनेस गेन कर लो एंड देन यू कम बैक टू द टीम। तो आई थिंक या अगर रॉड्री नहीं खेला तो इससे बड़ा एडवांटेज को चेल्सी को हो ही नहीं सकता है एग्जैक्टली. अगर रॉड्री नहीं खेले, क्योंकि मैन सिटी की है ना, मतलब 1/3 ऑफ द टीम इज डिपेंडेंट ऑन रॉड्री, या कि रॉड्री स्टाइल टू विन द बॉल बैक, टू कीप द गेम टिकिंग, जो बुस्केट्स करता है ना वो वाला काम। क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा और अगर केडी भी खेलते हैं एज अ मिडफील्डर, सो दे आर नॉट दैट डिफेंसिवली एस्ट्यूट। वो ट्रैक बैक नहीं करते, बर्नार्डो सिल्वा करता है, बर्नार्डो सिल्वा कुत्ते की तरह भागता है, लेकिन तुम बर्नार्डो सिल्वा को कटा सकते हो। बर्नार्डो सिल्वा मतलब ऐसे टैकल वाला बंदा नहीं, तुम थोड़ा सा कटा सकते हो। और केडी भी तो अब भागना उसने छोड़ ही दिया वैसे बेसिकली। तो उस वे में तुम रॉड्री जो गेम टिक करके रखता है ना, कीप द बॉल पोजीशन, वो चीज कोवाचिच कैन लूज अ बिट, क्योंकि कोवाचिच निकालने का ट्राई करेगा। रॉड्री जो सिंपल रखता है ना गेम को, कोवाचिच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके एक दो के बीच में से कटाने का ट्राई करेगा, एंड देन यू कैन विन द बॉल बैक देयर, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर काउंटर रेट विद पेड्रो नेटो, एनकुकू और पाल्मर। तो आई वो थिंक चेल्सी, या वही चेल्सी को करना पड़ेगा या कि प्रेस द कोवाचिच। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी. जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, आई थिंक वी हैव नॉट सीन द गेम्स गाइस, बिकॉज ये पहले प्रीमियर लीग का जो स्टार्टिंग है, सो वी हैव टू असेस, राइट, क्योंकि ये नया मैनेजर है. वी हैव नॉट सीन हिम. लेस्टर में वो अलग ही उसका स्ट्रैटेजी है, एंड नाउ ही इज प्लेइंग अगेन इन अ चैंपियंस, मतलब प्रीमियर लीग, विच इज मच मच मोर सुपीरियर देन what he ever thought, right? The levels are different, everything is different, the pressure is different. So I think we will judge the games of Chelsea, and also I think we know what Manchester City are going to play, but Chelsea के जो games है, I think we will progressively aim and then we will deconstruct it, I mean construct करेंगे एक अच्छे से strategy. But अभी तो ये है कि प्रे ट्रेडिशनल फुटबॉल, प्रे ट्रेडिशनल काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, दैट इज व्हाट यू कैन विन बट अगेंस्ट. आई मतलब मेरे दो ही होप्स हैं प्रॉब्ली, कि डोंट गेट बैटर्ड फर्स्ट, है ना, कि 4-0 5-0 नहीं होना चाहिए, कि तेरे को बहुत बोलने का मौका मिल जाए फिर मतलब कि चेल्सी के बारे में। आई डोंट वांट टू गिव यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा है प्ले विद हार्ट, वैसा कि डोंट गेट स्केयर्ड, मतलब क्योंकि फर्स्ट मैच है और इसमें तुम हार सकते हो, यू कैन टेक द रिस्क ऑफ लूजिंग, क्योंकि सिटी के अगेंस्ट तो हारना ही, इट्स अ फ्री पॉइंट, इट्स अ फ्री हिट टू एंजो मरेस्का, वैसा उस वे में कि ही कैन टेक इट एज अ फ्रेंडली, कि सिटी के अगेंस्ट फ्रेंडली है, गो फॉर इट, गो फॉर द फ्री हिट, एंड मतलब मारने का ट्राई करो। उसमें फ्री हिट में डिफेंसिव खेलने का मतलब नहीं है उस, क्योंकि ये 3 पॉइंट तो वैसे भी जाने ही है। अगर 1 या 3 इसमें से आ भी गए तो इट्स अ बोनस फॉर यू। तो दैट्स हाउ चेल्सी शुड प्ले, मतलब ऐसा यूथ फुटबॉल नहीं चाहिए मेरे को, बस यू शेप। सो मैं अपने प्रेडिक्शंस बता देता हूँ. I think guys, we have summarized, right? So it's more about like Chelsea's को जो traditional है, be patient and then wait for your chances. I think that is what I think Chelsea need to do. I don't know what Enzo Maresca is going to do, but this is what, even as a Chelsea fan, that is what he needs. But as a neutral fan, I think that is the best strategy to get some points against the champions. So ये मेरा prediction है. It's going to be 1-3 and Man City is going to win. ओके 1-3, नाइस नाइस। मतलब मेरे को आर्ग्यू नहीं कर सकता मैं इस पे तेरे से, कि मतलब इट अ डिसेंट प्रेडिक्शन, ये सच होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तेरी जो मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ उससे। सो आई वुड गो फॉर अ 2-2, कि हमें ये पता है कि हम गोल खाएंगे ही खाएंगे,
आई नो कि है ना, मतलब फफाना और लिवाई खोलवे का जो सेंटर बैक पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाला है, दे आर गोना कंसीड गोल, क्योंकि फफाना का प्ले स्लो है, गेम अवेयरनेस वीक है उसकी अभी करंटली, क्योंकि ब्रो 2 साल से नहीं खेला है यार वो, ही इज नॉट प्लेइंग सिंस 2 इयर्स। 2 इयर्स बहुत ज्यादा हो जाता है यार। 2 इयर्स अगर तू मतलब तेरा कोडिंग करना छोड़ दे जो तू काम करता है, या फिर जो वो सॉफ्टवेयर का वाला काम करना छोड़ दे, तो यू विल बी रस्टी, मतलब तेरे को 6-7 महीने लग जाएंगे, मतलब टू गेट बैक इनटू दैट दैट रिदम, समझ रहे? तो दैट्स व्हाट फोफाना शुड, कि मेरे को लगता है, आई एम स्केयर्ड कि गोल तो हम खाएंगे ही खाएंगे, बट आई ट्रस्ट आवर अटैक लाइन, आई ट्रस्ट निको, आई ट्रस्ट पाल्मर, आई ट्रस्ट एनकुकू, आई ट्रस्ट पेड्रो नेटो। तो लेट्स सी, आई गो फॉर 2-2 मेरा प्रेडिक्शन होगा। Okay, that's a good prediction. मतलब तूने दोनों मैचेस में you have gone for the draw, या right? या So that's good. Um, so yeah, I mean, I या mean ये मतलब ठीक है मेरे मुंह से, मतलब I thought Man City is going to win because of या the sheer ability, but let's लेट्स से it's not a या point to debate on. It's just the prediction which you have already प्रेडिक्शन। summarized. So the first fixture, I think it's going to be draw for Pal again. It's going to be, now he's again predicting a draw. So and I या want I think I am यू आर going for गोइंग फॉर द Manchester United and ट्रेडिशनल ओवर, Manchester. या Yeah. यू आर गोइंग फॉर द ओवरवेट, मतलब ट्रेडिशनल जो मतलब अंडरडॉग विन की तरफ तो नहीं जा रहा है, अंडरडॉग्स को तो सपोर्ट Yeah, नहीं कर I'm रहा है going for the अभी। traditional way. Yes, या against the या odds नहीं जा रहा अपसेट मैं, नहीं होगा। towards the odds जा रहा हूँ. ठीक या है. सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम और थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम ऑफ द वीक है ब्रो, आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स। ये गेम एक्चुअली अच्छा ना होने वाला है, क्योंकि वुल्व्स हैव गुड प्लेयर्स। आई रेट वुल्व्स, और उनका मैनेजर को भी मैं रेट करता हूँ, कि जो मतलब उसका प्लेइंग स्टाइल वगैरह है, कि मतलब ही हैज मतलब टिकी टाका काइंड ऑफ अ प्लेइंग स्टाइल जो पेप करता है। मतलब सब पेप के चेले तो अब सब हो ही चुके हैं ब्रो, छोड़ दो अब तो, मतलब कोच के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, अनलेस Yeah. अनटिल तुम कॉन्टे, मरीनियो या क्लॉप के अगेंस्ट आ रहे हो, या पॉच वैसे जैसे कोच के अगेंस्ट आ रहे हो, अभी मतलब है ही नहीं, सब पेप के चेले हैं, सबके सबको वही विंगर इन्वर्ट कर, वो सॉरी फुल बैक इन्वर्ट करना है। तो मतलब आर्टेटा भी वही करता है, अभी जिनचेक को इन्वर्ट होने वाला है। तो व्हाट डू यू थिंक ब्रो, हाउ इज द गेम गोना बी? फर्स्ट यू गिव योर थॉट्स एंड देन आई विल गिव माय I think it's going to be pretty straightforward. I think it should be pretty straightforward, and I also think it will be pretty straightforward for Arsenal to win because it's in Emirates, and our season of the starting जो हमारे fans हैं, we are buzzing. जो नया जर्सीज से लेके सब कुछ जो है इस सीजन जो है वी आर बजिंग एंड वी आर रेडी, वी वर रेडी टू स्टार्ट द मतलब प्रीमियर लीग। एक मतलब जो कम्युनिटी शील्ड वाला मैच है उसी टाइम मैंने जो फ्रेंडली देखा था एंड पीपल वर फ्लाइंग एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉशियस बिकॉज वुल्व्स आर अ वेरी गुड काउंटर अटैकिंग टीम एंड दे नो हाउ टू प्ले दीज बट दे लैक दीज टू गाइज। पेड्रो नेटो नहीं है, right? That is a big X factor. Pedro Neto नहीं है, तो मतलब Wolves lacks the ability to counter attacking. And what about Adama Traore भी नहीं है, right? So तुम्हारे पास मतलब they have to play very unique football. I don't think that is going to gel against Arsenal because you can't play through our midfield very easily because that is what has happened So even in the previous season as well. I think Declan has also played. I think he has given us a good. I think he was given a good what's your against playing Sevilla. 11 gonna be? Sorry. What's your playing 11 is going to My be? playing 11, I think it's going to be. I think everyone knows what's the playing. It's going to be Ben White. At the back, it's going to be Raya, Ben White, and it's going to be Shinchenko. I think it's going to be Gabriel, Saliba, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, and then it's going to be Gabriel Jesus. And then I think Yeah. in the second half, I think he will bring Trossard in. I think he will also bring probably maybe not. I think maybe he will bring Jorginho in just to ease Rice in. But I think this is going to be a very straightforward and it's a very stable team. बहुत cohesive team है. And chances, I think it's going to be creating. I think I've seen the game in the preseason. I think Arsenal have started creating the chances so early. In the first kickoff, hote hi they start pressing the ball and then get it back and then they recycle it and then start pressing. So it's all about crosses. I think मैंने पिछले season में भी देखा है. It's all about crosses and taking the chances. Gabriel Jesus, I think it's your high time to I think score some of the goals at least in the starting of the season to entertain fans. I think it's going to be an Emirates win and it's going to be an easy Emirates win. I don't think it's going to be a tough one because we are defensively very strong. And Wolves actually they I think they should play counter but they lack the strength against Arsenal to do it. ब्रो उनके पास है ना फिनिशर्स नहीं है, मतलब अगर तुम्हें टीम देखेगा ना, अपार्ट फ्रॉम कूनिया
कोई Cunha नहीं is है not a finisher at all, bro. नहीं अब कूनिया थोड़ा बहुत जितना भी है वो हाँ। कूनिया है उसके नहीं, अलावा सराबी उनके है ना? पास हाँ सराबिया इज डिसेंट है Decent. पोडेंस वापस आ गया है पोडेंस इज ओके ओके हम्म। पोडेंस का भी मेरे को वो मिनी हजार्ड लगता था पहले वो जो खेलने का जो स्टाइल था ना पोडेंस का पर वो मतलब ही मतलब अब वो ही इज डन नाउ पोडेंस उसमें अभी स्किल्स बचे नहीं है और एक वो द कोरियन गाय एज पेप कॉल्ड हिम ची ना? हाँ वोंगची Wangchi. हाँ नहीं होंग ही चैन हो अच्छा, होंग ही चैन। तो हाँ मतलब वो और काफी एक ट्रेडिशनल है, मतलब ये लोग हाँ मतलब और एक पहले से ही उनका खेल रहे फेबियो हैं। सिल्वा और एक वो Fabio Silva. लेफ्ट हाँ मैं मतलब आई डोंट थिंक दे हैव एनफ बज अबाउट देम और एनफ Enough मेटल अब firepower to outscore Arsenal. I would या say और maybe they मिडफील्ड भी need नहीं है और one or two. मतलब और यू नीड अ मिडफील्ड अगेंस्ट आर्सेनल वो नहीं है उनके पास आर्सेनल के हाँ। अगेंस्ट तुम्हारे पास मिडफील्ड नहीं है ना तो अगर पार्टे डेक्लन राइस और ओडेगार्ड का मिडफील्ड है तो आई विल पुट माय हैंड्स अप देयर इटसेल्फ मतलब Yeah. भाई And also उनका डिफेंस मतलब भी काफी एजिंग है. It's Nelson Semedo, Craig Dawson. हाँ I think it's an aging defense as well. So I think डियोप हाँ, वो खेलेगा भी क्या? पता नहीं हाँ So yeah, I mean I've seen the वुल्व्स नीड साइनिंग्स ब्रो वुल्व्स नीड साइनिंग्स Wolves needs to yeah. हाँ मतलब चालाबा ले लो ब्रो हमसे कोई दिक्कत हाँ I think even you can take Nketiah from us, bro. मतलब इट्स ए स्ट्रेट आई थिंक इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम मेरे हिसाब से तो इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट आई विल गो फॉर 2-0 Yeah, क्योंकि even I आर्सेनल would go गोल for 2-0. आर्सेनल गोल नहीं खाने वाली है Yeah, इसमें even I would go for 2-0. तो I दोनों think 2-0 2-0 क्या 2-0. I think we are going to lose points in the sense कि हमने गलत स्कोर प्रेडिक्ट किया है. I think हाँ क्योंकि जो अगर स्टार्टिंग के जो 15 मिनट में एक गोल हो गया ना, I think it's going to be हाँ different और game. अब तो मतलब यू हैव बिकम ए स्टोक एफसी इफ वी टॉक अबाउट इट हाँ. एग्जैक्टली मतलब सेट स्टोक पीस का में तो हमारा ऐसा लगता है कि पेनल्टी है जैसे गोल होने ही वाला है, कुछ ना मतलब कुछ गड़बड़ होता ही है. स्टोक का तुम अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन बन चुके हो तुम अब मतलब स्टोक प्लस फुटबॉलिंग स्किल्स ये स्टोक तो हो ही तुम मतलब तुम्हारा पहला गोल हमेशा मतलब तुमने मतलब आई रिमेम्बर ऑल योर मैचेस की तुमने ना जो 6-7-0 जीते थे ना लास्ट सीजन कि वो दुबई से आने के बाद हाँ, कि सडनली यू हैव गॉन इन अ रन ऑफ कि मतलब 6-0 5-0 हाँ. 3-4-0 4-0 4-2 ऐसा करके तो वो सारे मैचेस में ना पहला गोल कौन था सलीबा piece ही था. पहला कौन है गैब्रियल पहला कौन है बेन वाइट ये तुमने हेडर मार मार के गोल मार के और नाउ फिर देन टीम हैव्स टू ओपन अप और फिर ओपन होने के बाद तो मतलब यू विल कार्व आउट देम तो वो गया तो मतलब भाई वुल्व्स गोल नहीं खाना है ब्रोस पहला तुम्हें पहला गोल नहीं खाना जितना हो सके होल्ड आउट करो क्योंकि देन यू विल फ्रस्ट्रेट आर्सेनल अगर तुम्हें ड्रॉ कराने का भी तो कोई चांस है ना कि हाँ. आर्सेनल को सेट पीस में मत गोल मारने दो अगर तुमने सेट पीस पे गोल मारने दे दिया ना इट्स ओवर फॉर यू एंड ऑल्सो द एक्सपेक्टेशंस आर हाई, राइट? क्योंकि मतलब जो नर्व्स विल स्टार्ट गेटिंग, मतलब जो किकिंग स्टार्टिंग सूनर नाउअडेज, क्योंकि मतलब वी नो आर्सेनल आर गोइंग टू स्कोर एट सम पॉइंट, बट द नर्व्स है वो आएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन पिछले सीजन भी ऐसे ही था. पिछले सीजन एक्सपेक्टेशन वाज ऑन द रूफ. द सेम थिंग ये वाला सीजन तो हम ऑलमोस्ट ऑन द रूफ है कि टू विन द प्रीमियर लीग. सो it's going to be a nervy set of seconds if Arsenal didn't score in the first half or for the first 60 minutes. So I think we both predicted the same. I think this match 2-0. I think we are going to lose points because I think Arsenal are going to score more, but it's more of a 3-4 nil के approach. भी चांस ज्यादा है इसमें Yeah. आई थिंक सो नेक्स्ट बिग गेम ब्रो मतलब इट्स नॉट अ बिग गेम दैट्स But for one team, it's a big game. हाँ मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब जो रेलीगेशन से टीम होके आती है ना उनको फर्स्ट गेम मतलब ऐसे थप्पड़ पड़ने वाला लगता है कि रियलिटी चेक आने आता है उन्हें कि मतलब But उनका जोश भी रियलिटी होता है चेक starting वाला हाँ वो वही ब्रेंटफोर्ड ने जो तुम्हारे अगेंस्ट किया था 3-0 ब्रेंटफोर्ड ने खेला था, लूटन टाउन भी अच्छा खेल रही थी, उनका प्रीमियर लीग का जो डेब्यू था सब अच्छा था. हाँ तो मतलब पर इप्सविच वर्सेस लिवरपूल हैज टू बी केयरफुल बट आई थिंक इप्सविच हैज नो चांस आई डोंट थिंक दे हैव एनी चांस व्हाट डू यू से दिनेश Yeah, even I think the same. Liverpool have to be careful because it shouldn't be a repeat of what they happened in Luton Town against Luton Town. हाँ वो last minute winner it was from नहीं Darwin ड्रॉ हुआ था ना ड्रॉ हुआ था क्या? अब वही हाँ, लास्ट मिनट ड्रॉ ना, वो डार्विन हाँ. न्यूनेस ने मारा था. हाँ. सो आई थिंक दे शुड बी कॉशियस बिकॉज यू नो व्हाट मैकेना का जो प्ले स्टाइल है, या इट डजंट मैटर, राइट? मैकेना या वो अगर इप्सविच में पेप भी हो, दे आर नॉट गोइंग टू डोमिनेट द बॉल अगेंस्ट लिवरपूल बिकॉज लिवरपूल आर गोइंग टू फक द शिट आउट ऑफ देम बाय प्रेसिंग ईच अदर. मतलब ये सेम जो पाल ने बताया था, इट्स गोइंग टू बी रियलिटी चेक. सो गाइस एक फनी सा स्किट है पैडी पावर में जो आई थिंक यू हैव टू सी दिस, राइट? ये प्रोमोटेड क्लब्स के लिए परफेक्ट है मतलब. एंड द वे दे हैव समराइज्ड दिस, आई थिंक ये अगर तुम्हें सुनना है तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल, जो पाल ने बोला था वो रियलिटी चेक वो इन्होंने बहुत इनोवेटिव वे में बताते हैं. देख लेना एक बार.
Thank you for coming to today's session ahead of the new season. Some exciting new faces here and some teams that we've seen too many times. Sorry, is that who I think it is? Yeah, it comes with us everywhere, sadly. Right. क्योंकि वो John Ipswich the का same. fan है, Ed Sheeran. No, अच्छा Ed Sheeran Ipswich है क्या? Now, welcome to the Premier League. You enjoyed bossing the Championship last year, yeah? Yes! Good, because that fun ends today. Your experiences this season will be immeasurably shit and twice as expensive. So who's ready to go straight back down? Who's ready to get it? Ipswich क्या बोल रहा है? That's the spirit. That's the spirit. The greatest joy you will experience this season is a 2-2 draw away at Crystal Palace. You are no longer good teams. You are plucky. What are you? Lucky. Good. Right, role play. Opening day surprise win. How do you react? You. We can compete in this league like we've never been away. Could even push for top 6. No. Incorrect. This result will help us avoid relegation on the final day. Well done. Right, January transfer window. What are your tactics? Spend big to be competitive. No. FFP. Only the big clubs can spend big. Take Johnny Evans back on loan. Yep, he could be worth as many as 1 point by the end of the season. Buy an informed striker from League One who could do a job next year in the Championship. Absolutely right. Congratulations. You are now fully prepared for a season of broken dreams and abject mediocrity. Excuse me, which is the room for parachute payments and receiverships? You want 2 doors down, next to 115 charges, legal Q&A. Oh, Cheers. We'll be back next year under Scotty Parker. Of course you will. pal. Yeah, of course Who's you will. will ball? Put the guitar down. Ed Sheeran. पेडी और सेक्सी बनाता है रो, पेडी और सेक्सी बनाता है। पेडी और what बहुत a उसने funny उन्होंने वो skit, वाले what a जो funny बनाया था ना, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन वाला, क्या है मीटिंग पाएला, याद है वो वाला? स्पेन का स्किट वो भी तो बहुत अच्छा बनाया था। बहुत बड़ा- स्किट था कि हाँ। what मतलब 1 point Johnny Evans is worth 1 point and also और if you बेस्ट डायलॉग तो वही लगा कि मतलब योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट विल बी ड्रॉ टू क्रिस्टल पैलेस 2-2 दैट्स द हैप्पीएस्ट यू विल बी the season of broken dreams and abject mediocrity मतलब वो बिल्कुल ही you are सही है। what you are plucky You're plucky. oh, So yeah, I think that is what we are going to be. I think I would go for yeah it's a straight forward bro इसमें 3-0. एनालाइज की इतना No, जरूरत है मेरे नहीं को प्रेडिक्ट अच्छा से करना पड़ेगा। I think it's going to be 3-0. नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि 3-0 to मतलब Liverpool. इसमें एनालिसिस की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, इट विल हाँ. बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच की लिवरपूल विल पिक देम ऑफ। आई थिंक इप्सविच हैज सम डिसेंट प्लेयर कि उन्होंने केल्विन फिलिप्स साइन कर लिया ऑन अ लोन फ्रॉम मैन सिटी, तो लेट्स सी हाउ ही इज एट बीन। मतलब वेस्ट हैम के लिए तो ही वाज एब्सोल्युटली शाइट, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वेस्ट ही लॉस्ट पॉइंट्स फॉर वेस्ट हैम ब्रो। Yeah. मतलब वेस्ट हैम बस 2-0 जीती है, फिलिप्स आगे पेनल्टी दे गया, एक गोल रनर को ट्रैक नहीं किया, वो गोल कर गया, 3-2 वेस्ट हैम हार गई। Red card भी। मैच में रेड कार्ड भी वही मैच में हुआ भी था। तो पर देखते हैं स्विच में वो कैसा खेलता है, मतलब ही विल बी ए बिग प्लेयर देयर, तो हो सकता है उसके पास रिस्पांसिबिलिटी आ रही है तो ही कैन डू गुड। और दूसरा एक ओमारी हचिंसन है, चेल्सी का प्लेयर, चेल्सी हैव सोल्ड हिम इन 19 मिलियन टू इप्सविच, तो ही वाज द इप्सविच प्लेयर ऑफ द सीजन चैंपियनशिप में लास्ट सीजन, लोन पे गया था। तो देखते हैं वो कैसा खेलता है। इज ए डिसेंट एनफ राइट विंगर, मतलब सलाह का अगर वो आर्सेनल में रुकता तो ही कुड हैव बीन अ डिसेंट मतलब सब्स्टिट्यूशन फॉर साका, कि साका का रिप्लेसमेंट तो नहीं पर सब्स्टिट्यूशन वो जरूर हो जाता कि जब साका रिटायर किया, जब साका ये सब्स में जा रहा है या फिर साका इंजर्ड है तो उमारी तुम खिला सकते थे, पर कुछ नाउ यू डोंट हैव अ लेफ्ट बैक राइट बैक, कुछ भी मतलब यू डोंट हैव अ कवर फॉर राइट विंगर नाउ, सिर्फ साका ही है। तो लेट्स सी कि इस कैसे करती है। I'd go for तेरा 3-0 है ना? Liverpool 0-3. Yeah, I'll go for 3-1. Are you sure Liverpool. that they're going to score against Van Dijk, हाँ, Alisson? Yeah, मतलब ट्रेंट के अगेंस्ट करेंगे। Bro, this is sort of a biased take है ये तेरा। नहीं यार 1-3 जिता तो रहा हूँ और कैसे कर दिया, मतलब आई एम मेकिंग, मतलब छोड़ ठीक है। अभी फैंस बोलना नहीं है ब्रो ज्यादा, हम लिवरपूल के बारे में जितना बोलते हैं ना वी एड्रेस्ड इट इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड, पर अब लोगों को लग रहा है, करण एक हमारा दोस्त है उसने तो बोल भी दिया कि दिस इज नॉट अ रंगा एंड पाल टॉक फुटबॉल पॉडकास्ट, दिस इज एन रंगा एंड पाल लिवरपूल बैशर पॉडकास्ट। Yeah. So bro, last match that we will preview is Leicester versus Tottenham.
तो गिव योर थॉट्स ऑन लेस्टर वर्सेस टॉटनहम, क्योंकि उनका आई थिंक ये मैच जो पैडी पवर ने बताया था ना, आई थिंक लेस्टर इज गोइंग टू स्टील 1 point फ्रॉम टॉटनहम. आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टील 2 points. सो मतलब बेसिकली टॉटनहम को जो 2 points है वो स्टील करने वाले. सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी ड्रॉ, क्योंकि ये लेस्टर का मैच है और लेस्टर का जो फ्रंट थ्री है, क्योंकि लॉट ऑफ अननोन्स, किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है एंड नो वन इज कॉन्फिडेंट अबाउट एंज पोस्टेकोग्लू टॉटनहम दिस सीजन. एंड एवरीवन इज थिंकिंग इट्स गोना बी अ लाइवर, कभी भी फट सकता है. तो मेरे हिसाब से ये सीजन उनके लिए इट्स गोना बी अनट्रैवलिंग. आई थिंक एंज पोस्टेकोग्लू रहेगा, बट आई थिंक इट्स गोना बी मेनी प्रॉब्लम्स. भाई यू नो, तू बोल रहा था ईव्स बेसुमा पहला मैच हैज बीन सस्पेंडेड बाय एंज पोस्टेकोग्लू. एंज पोस्टेकोग्लू ने फक ऑफ बोल दिया ईव्स बेसुमा का. वो हीलियम गैस ले रहा था. हाँ, क्या लेके सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है. तो मतलब ये सोच, ये ऑन कैमरा है भाई, ऑफ कैमरा मतलब वो कर क्या रहा होगा वो बंदा. कुछ भी डिसिप्लिन फैक्टर नहीं है. आई डोंट थिंक सो ही इज गोना बी. वो मूवी है ना, and it's gonna be the ganja. नहीं उसका तो वो है ना, ही हाँ वो भी, ही से बिग वो गाय. सही सब कुछ मतलब. I think it's going to be happen. I think it's a weird season for Tottenham. I think they didn't want, first of all, I don't think Ange Postecoglou wanted Dominic Solanke in the first place. And also Tottenham fans also didn't want Dominic Solanke. So it's going to be a mixed feelings. And they accepted. So it's going to be a positive season. They accepted Dominic Solanke as their striker. And they now want him to play instead of Richarlison. I think मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग में अगर Richarlison एंज पोस्टेकोग्लू ने मतलब डोमिनिक सोलांके से भी ज़्यादा इंप्रेस किया ना, आई थिंक, क्योंकि एंज पोस्टेकोग्लू को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच है. ही डजंट केयर अबाउट डैनियल लिवी की वो साइनिंग है तो उसको ही खिलाना पड़ेगा. 65 और 75 मिलियन साइनिंग है तो उसको खिलाना पड़ेगा. आई थिंक इज गोना बी यू डू गुड इन द ट्रेनिंग, then you will be in the pitch. So I think it's going to be the same for Richarlison and it's going to be the Dominic Solanke. So दोनों में से कौन सबसे अच्छा खेलेगा, I think they are going to play them. And midfield अभी भी उनका वैसे थोड़ा सा weak है because of Yves Bissouma getting suspended and also I think Højbjerg भी coach आ गया. मतलब काफी आर्ची ग्रे है, पर लेट्स सी कि हाउ डिसेंट ही इज. खेलेगा या नहीं, बच्चा है वो. अच्छा है, ठीक ठाक है, मतलब नहीं बच्चा है वो, मतलब ठीक ठाक है. आई हैव सीन हिम प्ले, बट वही है ना, ठीक ठाक है. इट्स ऑल ठीक ठाक, राइट. एंड ऑल्सो देयर डिफेंस, नो एमरसन चला गया, पेड्रो पोरो खेलेगा, थोड़ा सा खोखला डिफेंस है ही इनका भी. आई थिंक पर बैक फाइव, आई लाइक देयर बैक फाइव ब्रो. मतलब अगर तुम्हारे पास अगर जो सीडीएम्स है, 2 सीडीएम, दे हैव टू प्ले 2 नंबर 6s टॉटनहम. अगर क्योंकि उनके विंग बैक्स हैं, वो फ्लाइंग विंग बैक्स है दोनों के दोनों, जो मतलब वी शुडंट कॉल देम फुल बैक्स, वो विंग बैक्स ही हैं. पेड्रो पोरो और उडोजी. तो अगर वो 2 एट द बैक खिला रहे हैं, 3 एट द बैक नहीं खेलते हैं, वो रोमेरो और वेंडर वैन के साथ 2 एट द बैक खिला रहे हैं, तो आई थिंक कि वो यू शुड हैव 2 6s, 2 सॉलिड 6s. मतलब अगर तुम्हारे सामने मैट्रिच और कांटे का पार्टनरशिप होता ना, तो वो मतलब वो बेस्ट है. मतलब कांटे भागने वाला और मैट्रिच रुक के पूरा मतलब गेम चलाने वाला, वैसा. तो दैट इज मतलब डिसेंट पार्टनरशिप. अगर वैसा कुछ पार्टनरशिप होता तो ईज बिसुमा थोड़ा था, पर आई डोंट नो अब कौन खेलेगा. पर वो खेलेगा, बेंटन कॉल खेलेगा, आई थिंक बेंटन कॉल खेलेगा, आई थिंक. एंड देन हॉयबर्ग चला गया, खेलेगा, पार्टन मैट्रिच सार खेलेगा, उनका सार खेलेगा, ये तीनों ही खेलेंगे शायद. एंड देन और मेडिसन पता ही है सबको, मेडिसन तो पता ही है. अच्छा तो फिर वो नहीं खेलेगा. आई डोंट थिंक हॉयबर्ग विल प्ले देन. हॉयबर्ग तो चला गया, हॉयबर्ग इज लेफ्ट. अच्छा हॉयबर्ग इज लेफ्ट, ओके. हां हॉयबर्ग चला गया. सो इट्स गोना बी मैटरसार, बेंटनकोर और वो. हां पर मतलब लेकिन अगर तू देखेगा तो दे हैव टू साइन अ मिडफील्डर ब्रो. मतलब उनका मिडफील्ड बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है मिडफील्ड डिपार्टमेंट तो टॉटनहम का. और उनका जो डेप्थ भी नहीं है इतना ज्यादा वैसे तो. एंड आई थिंक एंड द फ्रंट थ्री सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है. मतलब आई थिंक इफ़ यू जस्ट लुक ऑन पेपर, आई थिंक ह्यूमिनसॉन, कुलुसेव्स्की एंड ऑल्सो आई थिंक डोमिनिक सोलांकी / रिचार्लिसन. आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक जब जेल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. पर आई डोंट ब्रो, सन बुड्ढा है, सोलंकी जस्ट सॉन के पास तो टाइम है यार, वो मतलब खेल सकता है. आई थिंक वो बुड्ढा नहीं यार, उसका मतलब ही कांट प्ले एज अ विंगर ना, उसका विंगर वाला पेस चला गया है. अब उसको नंबर 10 खेलना चाहिए, मतलब मेडिसिन वाली जगह. जहां तक उसने अभी सारे प्री सीजन में ही वाज अ विंगर ओनली. पर उसका नंबर 10 तो उसका है नहीं. वो मतलब नंबर 10 में एक्चुअली ही प्लेड हिम ऑन नंबर 10. आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन, मोस्ट ऑफ द रीजन ही लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल द बॉल्स, बिकॉज वो अगेंस्ट द बॉल वो फेस नहीं कर सकता, रिसीव करके वो टर्न नहीं ले सकता. अगर तू सॉन को देखेगा ना, वो हमेशा डायगोनल पास ही वो रिसीव कर सकता है. तो देखना उसने कितने सारे गोल्स, इट वाज डायरेक्टली रिजल्ट बिकॉज ऑफ सॉन लूजिंग द बॉल इन फ्रंट ऑफ द डी. मतलब because of how they play. I think Madison should take the key role. I think उसको नहीं, पर सन को विंगर खिलाना will be a मतलब
डिजास्टर आई थिंक फॉर देम, क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है, ही कांट टेक ऑन प्लेयर्स नाउ, कि तो वो राइट बैक को टेक ऑन नहीं करेगा, वो हमेशा जो उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा वो बैक पास करना ही होगा, अनलेस एंड अनटिल ही एकर्स ऑफ स्पेस और उसको रन करने का मौका मिल रहा है थोड़ा बहुत, पर रन करने का मौका मिलेगा भी तो प्लेयर्स आर कैचिंग हिम नाउ। तो लास्ट सीजन देख रहा था, सन ने जो सारे के सारे गोल मारे थे वो स्ट्राइकर पोजीशन से मारे थे, वो लेफ्ट विंग से नहीं मारे थे, लेफ्ट विंग में ही वाज अ ड्रॉस वो पिछले सीजन, तभी उसने एंजो पोस्टेकोग्लू को शिफ्ट करके वो नंबर स्ट्राइकर खिलाने लग गया था। पर अगर अब स्ट्राइकर तुम उसको सोलंकी को खिला रहे हो तो तुम्हें लेफ्ट विंग सन को खिलाना पड़ेगा। तुम सन को खिला सकते हो, चलो लेफ्ट विंग मान लिया, ही कुड बी ए इनसाइड 10 और ओडोजी कैन टेक द लेफ्ट विंग, ठीक है, लेकिन इन दैट केस यू हैव ए पेसी विंगर ऑन द राइट, और पर राइट में दे हैव हु, कुलोसेस्की, तो कुलोसेस्की भी वाला पेसी विंगर नहीं है ना, कुलोसेस्की वो टेक्निकल विंगर है, वही तो मतलब वही है ना, वहाँ पे वो जॉनसन को खिला सकते हैं, पर जॉनसन इज शिट, जॉनसन इज टॉटनहम। जॉनसन इज शॉट, टॉटनहम इज ड्रॉ अल्ट्रा, जॉनसन बहुत ज्यादा शिट है। Yeah, but that's why they BJ don't have the depth. I think you can simplify, right? I think they need a winger, they need a number 6 kind of a player, Yeah. and they need a one more center back also जो decent हो। पर 3 दिन में क्या क्या कर लेंगे यार, Yeah. कौन कर लेकर ले लो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। so वो वैसे भी Paul, what वापस is your आ गया है। predictions? मतलब लेस्टर का, अगर तुम लेस्टर का टीम देखो तो वो थोड़ा खोखला हो गया है अभी, केडीएच चला गया है वहां से, ड्रूसबरी हॉल आ गया है, पर उनके वो एनडीडी वगैरह भी बुड्ढे हो चुके हैं, वो चौधरी हमजा का सेंटर बैक थे को याद है, फायेज फेस करके जिसने वो गोल बेल्जियम वाला जिसने बेल्जियम में भी हगा, प्लस उसके बाद उसने वो ओन गोल्स वाला मारा था, वो याद है, वो शायद आर्सेनल के अगेंस्ट मैच था वो, जिसमें वो ओन गोल्स के अगेंस्ट नहीं, एक्चुअली टॉटनहम को ही जिताया था शायद उसने, आई डोंट नो कौन सा था, जो पर आई लेजेंडरी डोंट, गेम था वो लास्ट में मेरे हिसाब से, नहीं, सिटी के अगेंस्ट था शायद, 2 ओन गोल्स वो अकेला मार गया था एक ही मैच में, सिटी या लिवरपूल के अगेंस्ट ही था शायद। हाँ मेरे को पता नहीं आर्सेनल क्यों याद आ रहा है, पर लेट्स सी, मतलब आई विल गो फॉर टॉटनहम विन 2-1। टॉटनहम विन 2-1, ओके, आई एम गोइंग फॉर द ड्रॉ नाउ 1-1। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बाइसनेस आ गई क्या? क्योंकि टॉटनहम हमेशा टॉटनहम के जो शॉट ऑन टारगेट है मतलब, हाँ यार ये तो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन है, आई थिंक लेस्टर अगर पेस पकड़ नहीं पाएगी तो हार जाएगी, बट आई विल गो फॉर टॉटनहम 1-1। या ठीक है, एक मैच और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब टॉप 6 के अलावा जो बहुत अच्छा मैच होने वाला है, मतलब दे कुड बी ए कंटेंडर्स फॉर टॉप 6 टीम्स, तो उस मतलब दैट मैच वी कैन इंक्लूड, दैट मैच इज एस्टन विला वर्सेस वेस्ट हैम। अगर वी विल जस्ट वेस्ट हैम के घर पे है आई थिंक, एक सेकंड में आई जस्ट सी किस कहां पे, लेकिन मतलब बहुत ही मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत ही मतलब जूसी फिक्चर है ब्रो ये तो। आई थिंक वेस्ट हैम बहुत एक्साइटिंग टीम है इस बार। हाँ, I think they have made lots and lots of signings, all those things in key areas. They have depth now, and also they have decent players. I think, and Johan Lopetegui is back in in West Ham. So I think Lopetegui अच्छा लगता है मुझे, मतलब ठीक ठाक कोच है वो, मतलब I like him. I think he did good when he was in Wolves as well. But Wolves ने उसको signings नहीं दिए जिसको वो चाहिए था. I think Wolves did not provide him. I think that is why I think looking at him, I think he was doing good for Barcelona as for the shortest time he was there. I think he was okay. Madrid. Sorry, Madrid. Yeah, sorry. For Madrid, I think वो he was okay. धोखा देके वो Madrid गया था ना. And then I think that is why I think he has the capability to build a decent team around him. I think it's not going to be defensively there. I think that is the mindset. It's going to be a different mindset. Yeah, I will not write him off. I will not write Lopetegui off this season. क्योंकि it's not going to be a defensive भाई, ये नहीं खेल सकता। अस्टन विला के पास अभी अस्टन विला डोमिनेट नहीं कर सकती हर चीज में, मतलब क्योंकि उनके पास डगलस लुइस नहीं है, they have Onana now. नहीं है, but Onana है, but okay. I mean, we're not saying it's going to be. I think on paper it's basically थोड़ा सा अस्टन विला पे ज्यादा है because of what Unai Emery did and because of Ollie Watkins and because they have already proved what the things are, right? But here I think it's more about all the new guys, how they are gelling up, because you have Fulkrug, Paqueta, Bowen, Kudus, Somerville. Bowen, Lucas Paqueta is also playing, and they have signed one decent midfielder as well, and also the centre backs. I think centre backs कौन है बाल West Ham के? I think Todibo and और दूसरा वो इनमें से डियोप में से कोई मार्क गुई है ना? गई तो में आ रहा है शायद, उन्होंने साइन करने वाले थे ना? नहीं वो न्यूकैसल जाएगा मार्क गुई। अच्छा, गूगल को तो न्यूकैसल, हाँ मतलब वो नहीं है, मार्क गुई नहीं है। आई जस्ट टेल यू एक सेकंड उनकी कौन है। उनका जो कीपर है वो तो फैबियंस की है ही शायद, तो आई थिंक इट्स अ डीसेंट इनफ कीपर।
बट ऑन पेपर नहीं वो आरियोला खेलेगा, आरियोला खेलेगा। आरियोला खेलेगा, हाँ सही हाँ आरियोला अच्छा है वैसे भी, लेकिन उनके पास ब्रो बैकअप में, उनके पास बैकअप भी बुरे नहीं है। सूचेक उनके पास बैकअप है, और कर्ट ज़ुमा उनका दूसरा सेंटर बैक है, वॉर्ड प्राउस है उनके पास, ये क्या बोलते हैं एमरसन उनका लेफ्ट बैक है। तो ब्रो दे हैव अ डिसेंट टीम। एक वो उनका कॉन्स्टेंटिनोस मैव्रोपानोस करके वो डिफेंडर है ना, ग्रीक। हाँ ग्रीक डिफेंडर, हाँ हाँ, वो नॉट गोना प्ले एनीवे। वो तो हाँ वो एक और यार, एक डिफेंडर उनका अच्छा है, एक डिफेंडर उनका पेसी डिफेंडर है, कौन है, क्या नाम है उसका, नाम वैन बिसाका भी चला गया ब्रो अब तो। अच्छा वैन बिसाका है, हाँ और किलमैन है ना उनके पास, तो किलमैन और ये टुडिबो का सेंटर बैक पार्टनरशिप होगा। हाँ और इधर साइड वैन बिसाका और ये एमरसन पाल्मेरी, डिसेंट वो है ब्रो, डिसेंट है। मतलब दे विल फाइट फॉर टॉप 6। आई थिंक टॉप 6 में पुश करने का वो ट्राई करेंगे इस बार वेस्ट हैम डेफिनेटली। पर एस्टन विला आई थिंक इट्स अ बिट वीकर ब्रो दिस टाइम। मेरे को एस्टन विला पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि थोड़े बहुत वीकर है, क्योंकि उनके पास डगलस लुइस चला गया, ओनाना आ गया। इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। डगलस लुइस इज अ फार बेटर प्लेयर देन ओनाना। ओनाना के पास एथलेटिसिज्म है, वो गोल रोकेगा, पर कंट्रोल वाला जो गेम एस्टन विला लास्ट सीजन कर रही थी ना, दे विल लूज दैट पार्ट नाउ ओनाना के साथ आने से। तो दैट्स द ट्रिक दे हैव मिस्ड आई गेस। Yeah, I mean, I agree to this. So, do we want to predict this as well, or? Yeah, let's go for this prediction also, ना अच्छा मैच है, predict कर देते हैं इसको। हाँ, what do you say, Dinesh? What do you say? I would go for Aston Villa 1-2. मतलब you are saying कि Aston Villa जीत रहा है? हाँ। किसके घर पे है मैच? वेस्ट हैम के घर पे, लंदन में। वेस्ट हैम वर्सेस एस्टन विला। तो you are saying 1-2. I'll go for West Ham and I'll go for 2-1 West Ham. Okay. मतलब मेरे को वेस्ट हैम थोड़ा बेटर लग रहा है इस टाइम अभी। पर वो उन्होंने ब्रो वो साइन कर लिया ना, रॉस बार्कली दे हैव ब्रो फॉर कंट्रोलिंग दैट। रॉस बार्कली आ गया ना उनके पास। हाँ रॉस और यान मटसन भी तो आ गया उनके पास, चेल्सी का लेफ्ट बैक जो आया था, याद है? अच्छा एस्टन विला और लियोन बेली तो है ही उनके पास। दे हैव अ डिसेंट टीम, मैगिन वगैरह तो सब अच्छे ही हैं, काफी अच्छी टीम है इनकी। मतलब लेकिन वही है कि मिडफील्ड में दे लैक दैट दिमाग वाला प्लेयर। प्रॉब्ली यूरी टिलेमंस को खिला सकते हैं ये लोग, पर लेट्स सी कौन खेलेगा। या I think this summarizes right or fixtures. I think it's going to be an exciting Premier League weekend. I think we are going to watch these fixtures. अगर हम लोग साथ में तो नहीं देख सकते, I think we will do watch along as the channel grows, and you guys can also share and come and join and watch along the I think not all the matches basically, but at least for the Arsenal matches, the important fixtures like Chelsea, Liverpool, Man City, Man United. So these kind of derbies we will watch, Tottenham derbies. So I mean these, our channel and our community are boom to grow, right? So we are in the right path. I think we need your support to make us grow, and we will build a very strong community and open community here, and then we will do everything together. I think बहुत मजा आएगा अगर हमारे reaction videos भी हम लोग भी start कर रहे हैं. We also want to see how you react when your team scores or when your team gets fucked by someone else. So मतलब ये सुनने में बहुत, मतलब ये reactions are the ones which are trending in YouTube right now, and we would want to do it as well, and we would want to do it with you especially. पाल तुझे कैसा लग रहा है ये watch along का plan? बाद में मतलब future में हमारा है कि नहीं हमारे इसमें plans में? तो जस्ट बिफोर वी कंटिन्यू, पीपल स्मैश द लाइक बटन, स्मैश द सब्सक्राइब बटन। हम लोग ज्यादा रिमाइंड नहीं कराते हैं आप लोगों को कि ऐसे बार बार आपने यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे कि वो हर 10 मिनट में दे आर सेइंग इस लाइक बटन करो, सब्सक्राइब बटन करो। बट जस्ट वी वांट टू से फ्रॉम द स्टार्ट एंड द बिगनिंग, स्टार्ट एंड द एंड कि स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस ग्रो। क्योंकि यूट्यूब अगर जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होता है ना चैनल पे, उसको एल्गोरिथम को उतना ज्यादा पता लगता है, एंड इट विल रीच आउट टू द नियर पीपल आल्सो। सो दैट्स द ग्रेन, मतलब ब्रास टैक्स हियर। Now the season is starting, Dinesh. The season start होने वाला है, प्रीमियर लीग इज बैक। पूरा एक साल हम पूरा मैच देखने वाले हैं, उन पर रिएक्ट करने वाले हैं, सारे मैच से प्रीव्यू करने वाले हैं। एक महीने बाद चैंपियंस लीग भी शुरू हो जाएगा। चेल्सी का तो अभी वेडनेसडे को ही मैच है, नेक्स्ट वेडनेसडे को कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफायर्स, तो वो मैच भी आने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग सीजन होने वाला है ये, और मतलब बहुत ही मजा आने वाला है रिएक्शंस के लिए और वीडियोस मतलब बनाने के लिए। द फर्स्ट सीजन वी आर कवरिंग एंड दिस विल बी एंजॉयबल सीजन। व्हाट यू मतलब, so people smash the like button, smash the subscribe button, and keep watching us, keep supporting us. And this is Paul signing off, and this is Ranga. जाने से पहले एक चीज, we are grown men, और हमें हमारा जो इमोशंस कौन डिसाइड करने वाला है, जो मतलब जो हमारा जो टीम है वो डिसाइड करने वाली है हमारे वीकेंड्स कैसे जा रहा है। हमारा जो मतलब आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली,
everyone will be likable only if our team wins that weekend, and we will be available only if our team wins that weekend. So it's going to be our emotions. We are grown men, but we still football fans. We'll watch and basically हमारा जो life है, पाले जो बोला 1 साल वो पूरा डिक्टेट हमारा नहीं करने वाला है और हमारा करियर नहीं करेगा. इट्स व्हाट बेसिकली जो मैचेस जो चालू है वो हम लोगों को करेगा. एंड थैंक्स पॉल, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग विद यू, एंड दिस इज रंगा साइनिंग ऑफ.